Good evening, everybody. I welcome you all to the ninth session of our 4-month climate literacy course. Today's session is going to be on climate change mitigation strategies, which is going to be facilitated by Dr. N.C. Gupta, who is a professor from Indraprastha University. Sir will be joining us very soon. And before Sir joins, I would like to do a quick recap of the last session that was again facilitated by Dr. N.C. Gupta. Last session was on climate change mitigation and adaptation. It basically gave an introduction about both the topics. And later on, Sir dwelled into climate change mitigation. And in today's session, he will be expanding more into climate strategies, mitigation strategies. In last session, Sir had talked about the likely impacts of climate change, which included different subtopics like health, wherein he touched about infectious diseases, mortalities. Then he talked about agriculture, which included things like crop yields, irrigation demands. Then he talked about forest, then water resources, coastal areas, species, and natural areas. He then dwelled into climate change in context of Asia, wherein he gave examples like Himalayas are now Himalayas, the flooding is increasing day by day due to the melting of the glaciers, and the fresh water availability in Central, Southeast, and Southeast Asia is day by day decreasing due to climate change. Then he talked about coastal areas in Southeast, and Southeast Asia, which are facing a greater risk of flooding due to the glacier melting and the amount of water increasing, which is that the sea level is rising day by day. Then he touched upon sustainability challenges, wherein he gave an overview of energy use worldwide, depletion of natural capital, global warming, and climate change. Then he talked about the fuel options and technology, which are basically non-fossil fuel sources. Here, he talked about wind energy, nuclear energy, solar energy, hydro energy, biofuels, hydrogen, hybrid cars, sugarcane juice, ethanol as an alternative to the current energy sources that we are using. As these sources are more eco-friendly, they emit less carbon as compared to the fuels that we are currently using, like coal. Then he talked about strategies for action that can be used to respond to sustainable environmental challenges, wherein he talked about integrated approaches in science and technology. There is a need for international cooperation and assistance on this matter. Sustainable economic development, the role of institutions of higher learning, and understanding sustainability problems. Sir also gave a very brief about India's initiatives like National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, etc., which will be very briefly touched upon in our later on sessions. And thank you all. This is all for recap. Sir, now I would like to invite Ajit sir, as sir wanted to share a very important information about the climate literacy course with all the participants. Sir, over to you, sir. चलिए नम्रता, ठीक है, मैं 2 मिनट में शेयर करता हूँ या देखता हूँ सर जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो अगर चूंकि ये इन्फॉर्मेशन हम बाद में भी शेयर कर सकते थे, लेकिन अगर सर आ गए हैं तो एक बार देख के इनको हम वो कर लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन तो हम कभी भी शायद शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने उनको प्रमोट कर लिया है। ओके।
नमस्कार सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। Good evening. कैसे हैं सर? गुड इवनिंग। जी। आपके 2 मिनट में से सर हमने नम्रता जी ने रिकैप थोड़ा सा पीछे के सेशन के बारे में शेयर किया है। यस, चूंकि अब आ गए, इसके बाद हम बिल्कुल आपको हैंड ओवर करते हैं। चूंकि हमें जितना अधिक से अधिक ज्ञान लेने की बात है वो हमें लेनी है, बाद में हम आपस में अपनी बातों को शेयर करते रहेंगे। नम्रता जी, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आज का जो सेशन है मिटिगेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आपको सेशन आगे बढ़ाने के लिए। मैं अभी स्क्रीन करता हूँ, ओके सर। Yes. स्क्रीन शेयर करता हूँ। कैन यू, इट इज डिसेबल्ड टू शेयर द स्क्रीन। सर Okay, so I'll just try this. Yes, sir. एक बार अभी try कीजिए, please. यस, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. इज इट विजिबल? इज इट, आई थिंक, विजिबल टू ऑल स्क्रीन? यस यस Hello. सर। Yes, it is visible. ओके, so basically the today's session is the climate change mitigation strategy. We will focus on this mitigation strategy part. At the outset, I think I will start the lecture. Now, what are the, we will take some from previous lecture, the causes Earth's climate to change. The major causes basically are the natural processes and anthropogenic processes known as the human activities. So in natural processes like volcanic activities, volcanic activities, tectonic plate movement, changes in the sun orientation, shifts in the Earth's orbit, and human activities, and these are the anthropogenic activities, human activities, any activity that releases the greenhouse gases into the atmosphere. In last lecture, I think we also discussed this in detail. And this also be, I think I discussed this slide, how the carbon dioxide emissions are increasing into the atmosphere, how the nitrous oxide emissions are increasing into the atmosphere, and methane emissions are increasing into the atmosphere, and other greenhouse gases are increasing into the atmosphere. Like if you see this graph, you know around 1,000 years ago, 2,000 years ago, or 1,000 years ago, for 1,000 years, you see from the 10th century to up to the 18th century, the concentration of the CO2 into the atmosphere was static, was constant. वो पूरा स्थिर था 280 पार्ट पर मिलियन. आज मैं गूगल चेक कर रहा था, तो यू कैन आल्सो चेक ऑन द गूगल द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 into the atmosphere, or you can check from the Google. You can just type the Keeling curve, KLEEING. Keeling is basically is a laboratory in the Hawaii, and their measurements are accepted by all over the world. What is the concentration of CO2 into the atmosphere? So currently it is it's around 421 or 420 part per million. So you can see 420. This has, but this 420 part per million, you can see this 140, around 140 part per million is from 10th century to 18th century. Up to, you can say, this concentration of CO2 was completely stable in the atmosphere.
But after the invention of the Carnot engine, when industrial revolution was started in 1850, and after 1850, because the consumption of fossil fuels was fossil fuels were utilized on a very fast pace. So बहुत तेजी से जो यूज हुआ फॉसिल फ्यूल्स का, जो जैविक जो जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, तो उसकी वजह से जो CO2 के जो कंसंट्रेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और आज ये 4 यू कैन से दिस 420 पार्ट पर मिलियन तक पहुंच गए। तो करीब करीब ये 50% की वृद्धि हुई है, 140 पार्ट पर मिलियन 280 से बढ़ गया, तो ये करीब करीब 420 हो गया। और इसकी वजह से जो जो आप देखते हैं, जो जो रेडिएटिव फोर्सिंग हुई अर्थ में, जो वॉट पर मीटर स्क्वायर जो ऊर्जा बढ़ गई वो 1.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड कंसंट्रेशन करीब करीब 0.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर बढ़ गया, कि रेडिएटिव फोर्सिंग बढ़ गई। एक्चुअली रेडिएटिव फोर्सिंग इज ए वेरी technical term. It's basically this increases how much energy is increased on the earth to get the earth warmer and warmer. Similarly, you see methane gas is also increasing into the atmosphere, and it is also 750 part per million. पार्ट पर मिलियन का मतलब है 10 लाख मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल, तो 10 लाख मॉलिक्यूल में 750 मॉलिक्यूल थे CH4 के 1000 साल पहले, और ये कांस्टेंट थे 10वीं सेंचुरी से लेके 10वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक, ये सब 750 पार्ट पर मिलते। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जैसे ये औद्योगिक क्रांति हुई जो 200-250 साल पहले, उसके बाद में जब ये जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये कंसंट्रेशन CO2 का और CH4 का भी एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से बढ़ा, और इसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है ना। अगर आप देखें ये climate change history like 1850 और 1880 has resulted in the rise of global temperature करीब करीब 0.85 डिग्री सेल्सियस। और जो जो हिस्टोरिकल जो स्पेस है बेसिकली, जो जितने कार्बन एमिशंस एटमॉस्फेयर में जो भी 1850 से लेकर अब तक उत्सर्जित हुए ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें सबसे ज्यादा जो आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो पार्ट है एक कंट्री का, वो यूनाइटेड नेशंस का है करीब करीब 29%, और बहुत सारे अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक जितने भी यूरोप के कंट्रीज उनका 45% है, चाइना का अकेले का 10%, इंडिया का देखते हैं कि बहुत कम है, इस ओनली 3%, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, एनर्जी यूज भी काफी कम है। सो आप देखा कि नेशनल सर्कमस्टेंसेस एंड चैलेंजेस, व्हाट आर द नेशनल चैलेंजेस फॉर इंडिया। जो इंडिया का जो सरफेस एरिया है, वो हमारा पूरी जो जो दुनिया का सरफेस एरिया है वो उसका केवल 2.4% है, और हमारी आबादी जो पूरी इंडिया की जो आबादी आप देखते हैं कि वो 17.5%, पूरी वर्ल्ड की आबादी की 17.5% है। हर 7वां भारतीय जो आदमी है वो इंडियन है इस धरती पर। तो पॉवर्टी 30% जनता जो देश की वो लिविंग इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, 20% population without proper housing, and 25% people are still without electricity, and per capita consumption हमारा बहुत कम है। If you compare with the world per capita consumption, if you see the drinking water, around 9 crore people without safe drinking water। वाटर तो है पीने के लिए, बट वो सेफ नहीं है। It's not a pipe drinking water supply is lacking for around 9.5 to 9.2 crores। एंड इंडिया की अभी प्रायोरिटीज है पॉवर्टी इरेडिकेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ। अब नाउ इफ यू सी द लीडरशिप, इंडिया की जो गाइड बेसिकली इंडिया गाइडेड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग इंडिया, जो इंडिया के जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, ये बेसिकली क्या है, जो NDCs हैं वो इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है CO2 मिशन में, कितना हमको फ्यूचर में इसमें कट करना है, ये सब इससे डिसाइड होते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट जो हमारी जो भारत सरकार ने बनाए हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे 175 गीगावाट हम जनरेट करने का जो टारगेट था बाई 2022, उसमें काफी मीट भी हो गया है। लेकिन अभी जो 100 गीगावाट का जो टारगेट था हमारा, 100 गीगावाट का मतलब है कि 1 लाख मेगावाट, क्योंकि 1 गीगावाट इक्वल्स टू 10⁹ वाट, तो गीगा मतलब ये 100 गीगावाट जो सोलर एनर्जी मींस आप कह सकते हैं कि 1 लाख मेगावाट और सोलर बाई 2022 जो साल निकल गई, उसमें काफी हमने अचीव किया।
और 60 गीगावाट का विंड एनर्जी का, 10 गीगावाट का बायोमास से जनरेट करने का हमारा लक्ष्य था। और बहुत सारे और जो लक्ष्य हैं देश के, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स है, जीरो डिफेक्ट है, जीरो इफेक्ट है, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन भी चल रहे हैं, और हाउसिंग फॉर ऑल। So now we have laid the emphasis on sustainable development, climate justice, and lifestyle. Lifestyle आपने देखा होगा काफी अखबारों में पिछले 1-2 साल से आ रहा है। जब ये ग्लासगो में जो समिट हुई थी, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जिसमें हम कम से कम जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करें, और हम लाइफ स्टाइल को बहुत एनर्जी एफिशिएंट बनाएं। तो इसमें बहुत सारे गोल थे, टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, और जो 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 पर कैपिटा जो जीडीपी है देश की, उसमें हम कितनी, मतलब एक यूनिट जीडीपी को जनरेट करने के लिए हम कितनी एनर्जी खर्च करते हैं, उसमें हम 35% एनर्जी हमने लक्ष्य किया कि हम कम खर्च करेंगे बाई 2030, और 75% जंप इन द एम्बिशन ओवर 2020, एंड टू अवॉइड द एमिशन करीब करीब 3.59 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हम अवॉइड करेंगे। बिजनेस जो हमारी अभी बिजनेस एज यूजुअल सीनरी चल रही है, उससे हम इनको और कम करेंगे। और आवर नेशनल प्लान एम्बिशियस एंड पर्पसफुल, जैसे हमारा थ्रस्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, हम विंड एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा के हमने बहुत सारे एमिशंस कम किए हैं। आपने देखा हर एक की इसमें भागीदारी है। जैसे आप देखेंगे पहले जो इनकैंडेसेंट लैंप आते थे, जैसे आप जो बल्ब खरीदते थे वो फिलामेंट का होता था, टंगस्टन के फिलामेंट का, और वो 60 वाट 100 वाट के होते थे। आज हम जो ट्यूबलाइट खरीद के लाते हैं, हम एलईडी लाइट लाते हैं। आप देखो जो आज जो बल्ब आता है एलईडी का, वो 9 वाट का आता है, और 9 वाट में इतनी रोशनी जो रहती है आपकी, तो कहाँ 9 वाट, कहाँ आप 100 वाट का बल्ब लगाते थे। तो अब जो 100 वाट के बल्ब में उसने आप उसमें 10 एलईडी लाइट लगा सकते हैं। तो वैसे तो एलईडी लाइट थोड़ी महंगी है, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी से काफी सस्ती हुई है। आप देखेंगे एलईडी लाइट का जो 6-7 साल पहले, 8-10 साल पहले जो मूवमेंट चला था, उसमें आपको घर घर में आप एलईडी लाइट मिलेंगी आपको। तो उसकी वजह से हमने एनर्जी एफिशिएंसी काफी बढ़ाई है। और हमने जब एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई है देश में, तो हमने जो ऊर्जा की खपत है वो हमने कम की है, और जब ऊर्जा हमारे पास जो बची, इलेक्ट्रिसिटी बची, उसको हमने गाँव तक पहुंचाया है। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी में एक बड़ा कदम है। और जो बहुत सारे आपने देखा होगा कि आपके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो पहले बिना स्टार के थे, फिर जैसे आपके फ्रिज हैं, आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज, और सेम थिंग, और आपके जैसे ये एयर कंडीशनर्स हैं, उनमें भी आपने स्टार रेटिंग दी है। तो एनर्जी जो आप जैसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, आप 5 स्टार खरीदते हैं तो थोड़े महंगे होंगे, लेकिन वो एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं। जब एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं तो आपको एनर्जी बनाने के लिए कोयले की कम की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये बहुत सारे मिटिगेटिंग मेजर्स ऐसे लिए गए हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन सेंटर्स एंड सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में आ भी गए हैं, तो वो सब सस्टेनेबल ग्रीन ट्रांसपोर्ट है। उससे आपने देखा होगा कि टेल पाइप एमिशन जो है, जो पीछे जो जो टेल पाइप से जो एमिशंस निकलते हैं, धुआं निकलता है व्हीकल से, वो उससे कम होगा। स्वच्छ भारत मिशन का भी एक मूवमेंट चला है। और क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, हमने अपनी नदियों को भी साफ किया। जब नदियों को हम साफ करेंगे तो हमारे पास जो पीने का पानी है वो ज्यादा साफ होगा, और हमें उस पीने के पानी को साफ करने में कम से कम ऊर्जा की खपत होगी। फिर आप देखते हैं कि जो सोलर प्रोजेक्ट्स है, सोलराइजेशन ऑफ द पेट्रोल पंप्स, टोल प्लाजाज अक्रॉस द कंट्री, जैसे दिल्ली में आप अगर देखते हैं तो अक्षय ऊर्जा भवन, आप कभी लोधी रोड की तरफ जाएंगे तो आपको देखेंगे एक पूरा एक रिन्यूएबल एनर्जी का जो MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसकी पूरी बिल्डिंग वो अक्षय ऊर्जा भवन उन्होंने बनाया है। उसमें पूरी जो जो एनर्जी सप्लाई है वो सब, ये सब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे की गई है। सो बहुत सारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं मिटिगेटिंग मेजर्स लेने के लिए जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, जैसे 25 सोलर पार्क्स, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लिए किए जा रहे हैं। कैनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट, जो कैनाल है उनकी, क्योंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट में बहुत सारी जमीन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा एक आइडिया है कि जो हमारी जो कैनाल्स है, हमारी जो 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 नहरें हैं, उनकी दोनों तरफ जो लैंड है उस पर हम सोलर के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। पैरेलल हाईवे की तरह, हाईवे के बीच में मिडिल में जो डिवाइडर है उस पर भी लगा सकते हैं। तो बहुत किसानों को भी बहुत सारे 1 लाख से ज्यादा
सोलर पंप किसानों को बांटे गए हैं सब्सिडी पे, जिससे कि वो बिजली की खपत कम करें, सोलर से पानी पंप करें। इंडिया जो एंकर है ग्लोबल सोलर है, हमने ग्लोबल सोलर अलायंस भी बनाया है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। नाउ न्यू मिशन विंड एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी पर भी बहुत सारे मिशन आप देख रहे हो। दिल्ली में जो कई जो प्लांट है, ओखला का प्लांट है, गाजीपुर का प्लांट है, उसमें जो वेस्ट की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी जो कचरा है, जैसे दिल्ली में जो आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी आज से 6-7 साल पहले 8,000 टन पर डे कचरा पैदा होता था। आज वो मैं देख रहा था, कल का न्यूज़पेपर में आया था कि करीब 11,000 टन प्रतिदिन जो कचरे का उत्पादन होता है दिल्ली में वेस्ट का। तो उस वेस्ट को कहाँ डालें? आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत सारे, गाजीपुर है, बलसवा है, ओखला है, यहाँ पे पूरे कूड़े के मतलब ढेर क्या पहाड़ से बन गए हैं। तो अभी एक ऑप्शन है कि लैंड की बहुत ज्यादा कमी है, तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, हम जो भी कचरा है जो शहरों का, उसको हम सेग्रीगेट करें और उसको जलाएं, उससे बिजली बनाएं। और उससे क्या है कि हमारा जो जो कचरे का पूरा निस्तारण है वो भी होगा। तो अब ये बेसिक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स बीइंग रोल्ड आउट टू एंश्योर इवैक्यूएशन फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। बहुत सारी जगह और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पार्क भी बनाए जा रहे हैं। जैसे गुजरात में हिंदुस्तान का, देश का सबसे बड़ा एक सोलर पार्क बनाया गया है। वैसे ही आप देखते हैं कि टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक्स ऑफ 2.5 and 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover, an increase of about 680 to 817 million tons of carbon stock to generate. And there is an emphasis on India's plans to enhance its carbon sink, full implementation of Green India mission. This was launched, Green India launched Green Highway Policy, 1,40,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्री लाइन। ऐसा एक प्लान बनना है कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवे जो उनका जिनको ब्रॉड किया गया है, चौड़ा किया गया है, उनमें हम दोनों तरफ जो 1,40,000 किलोमीटर का जो लॉन्ग ट्री लाइन है वो बनाई जाए along sides the national highway, and 1% of project cost to be earmarked for pop plantation। तो जितने भी हाईवे में कॉस्ट जो आपकी आ रही है, टोल प्लाजा और आपके जो हाईवे के निर्माण में जो कॉस्ट आ रही है, उसकी 1% ये प्लांटेशन पे खर्च की जाए और ट्री प्लांटेशन पर। तो 1,40,000 किलोमीटर का जो आपका जो हाईवे है पूरे देश में, उन पर ये प्लांटेशन होगा। सो प्लांटेशन अलॉन्ग रिवर्स, रिवर के दोनों तरफ प्लांटेशन हो, पार्ट ऑफ दी, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द नमामि गंगे मिशन लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप देखते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन incentives for the creation of carbon sink, devolution of the funds to states from federal pool, 7.5% weight to area under forest, and reduction in the consumption of wood biomass as a fuel, and funds from compensatory afforestation fund management and planning authority. And $6 billion are proposed to be given to states under this CAMPA plan, and other policies including like RED Plus and National Agroforestry Policy, Joint Forest Management and National Afforestation Program. And for sustainable lifestyle, as this sustainable lifestyle is propagated by the Prime Minister of India. The goal is to put forward and further propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation and extravagant lifestyle। like अगर आप बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और जो जिन चीजों की, बहुत सी चीजों की आपको जरूरत नहीं है, उन चीजों का आप इस्तेमाल ना करें तो अच्छा ही है। आप जैसे बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें लोग पैदल चलना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जैसे देखा होगा हमने अपने देश में कि हम अगर कार में चल रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा बहुत बड़ी शान समझते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने में हमें थोड़ी हीन भावना आती है। ऐसा विदेशों में आप देखेंगे तो वहाँ ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पर्सनल कारें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि वहाँ पर कैपिटल इनकम हमसे बहुत बहुत ज्यादा है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हमसे बहुत अच्छा है। तो हम ये जो इसमें ये कि हम कार पूल करें, हम बेकार में, अगर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो हम कार में 5 लोग बैठते हैं, लेकिन आपने देखा होगा खाली एक आदमी कार चला रहा है, 4 सीटें खाली हैं और हम इतनी दूरी तय कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे एमिशन भी कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो लाइफ स्टाइल है, अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो इट विल रिक्वायर 5 planets।
sustainable lifestyle will require अगर sustainable lifestyle will require only one planet. Promote sustainable lifestyle based on need based consumption. Now अगर आप देखें CO2 emissions, ये 2020 का डाटा है बाय रीजन पर कैपिटा एंड ग्रोथ। आप देखें कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है जैसे सऊदी अरबिया है और आपके यूएई वगैरह हैं, तो इनमें जो कंट्री हैं उनमें CO2 एमिशन पर कैपिटा बहुत ज्यादा है। हालांकि इनकी पॉपुलेशन भी कम है और इनका एनर्जी के सोर्सेज बहुत है, इनके पास काफी ऑयल है, तेल है, क्रूड ऑयल है जिसको हम इंपोर्ट भी करते हैं इन कंट्री से। तो इनका पर कैपिटा CO2 का एमिशन बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी काफी ज्यादा है, लेकिन यूएसए का भी काफी करीब करीब 15 CO2 टन पर कैपिटा के आसपास है, मतलब 15 टन पर कैपिटा के आसपास है। चाइना का अराउंड 6-7 पर कैपिटा। बट हम देखते हैं कि इंडिया का हमारा जो पर कैपिटा जो CO2 एमिशन है वो बहुत कम है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है भारत का वो बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि अगर आप टोटल एमिशन देखेंगे तो हमारे काफी ज्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। तो जो आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्री जो पुअर कंट्रीज है उनका पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है। नाउ सेक्टर वाइज CO2 एमिशन अगर देखें इंडिया में तो मिलियन टन्स में आप देखते हैं कि 2020 में आप हमारे टोटल जो एमिशन थे वो करीब करीब 1621 गीगाटन के आसपास थे। ये 1621 मिलियन टन के आसपास थे, 1.62 गीगाटन के आसपास। इसमें से आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 1000 मिलियन टन का CO2 का, वो खाली पावर सेक्टर से है। उसके बाद में आप देख रहे हैं आप जो रिफाइनरी केमिकल्स, और उसके बाद फिर आयरन एंड स्टील, फिर 196 सीमेंट, एंड उसके बाद ये नेचुरल गैस बेस्ड H2 प्रोडक्शन। बट आने वाले दिनों में भाई 2030 क्योंकि हम कोल का गैसिफिकेशन शुरू कर देंगे, तो जब कोल का गैसिफिकेशन तो एक नई जो कोल ऐसे सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज ना होकर ये एक गैसेस फ्यूल के रूप में यूज होगा, तो ये इससे भी थोड़ा एमिशन कोल गैसिफिकेशन से बढ़ेंगे। तो वो इधर आपके 27 करीब करीब ये प्रोजेक्टेड है कि भाई 2030 हमारा ये करीब करीब टोटल एमिशन वो 2291 मिलियन टन के आसपास हो जाएंगे। ना अब बात आती है कि मिटिगेशन मेजर करने के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे उद्योग धंधे हैं, वो काफी जो एमिशन करते हैं, लाइक पावर इंडस्ट्री और अलग जो हमारी इंडस्ट्री है सीमेंट स्टील, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनसे एमिशन करना भी बहुत काफी मुश्किल है। तो अभी अब जो नीड है वो नीड ये है कि हाउ टू डिकार्बोनाइज द इंडस्ट्री, जो नीड फॉर डिकार्बोनाइजेशन, कि हम जो इंडस्ट्री है उनसे हम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कैसे कम कर सकते हैं। So decarbonization basically this refers to the process of reducing carbon emissions into the atmosphere to limit global warming to below 2 degrees Celsius above the pre-industrialized level. Pre-industrialized level is a 1850 level। 1850 ईस्वी में जो हमारा जो धरती का तापमान था 15 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ रहा है, उसको हम 2 डिग्री तक हमें लिमिट करना है। Now adverse climatic effects due to the rise in greenhouse gas GHG emission and rise in global temperature। नाउ कमिटमेंट बाय इंडिया इन कॉप, ये जो कॉप 26 जो 2021 में हुई थी, उसके बाद में कॉप 27 भी हुई मिस्र में, तो ये इजिप्ट में। लेकिन कॉप जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है, तो ये यूनाइटेड नेशंस करता है। इसमें यही धरती को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में हमने जो 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 हमने उद्देश्य सेट किए थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे कि हमें धरती का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है इस सदी के अंत तक, तो उसके लिए जो इंडिया ने द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बेसिकली गेव दी ए न्यू आइडिया इन कॉप 26 इन ग्लासगो इन यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में ये हुई थी 2021 में नवंबर में, 2 साल पहले करीब करीब। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक पंचामृत दिया था। इट इज नोन एज बिकॉज देयर आर 5 पॉइंट्स टू कंसंट्रेट फॉर इंडिया टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस emissions, and that was named as Panchamrit। So this Panchamrit given by the Honorable Prime Minister was कि हमें क्या करना है बाई 2030 तक, तो आने वाले 7 साल हमारे पास बचे हैं, तो टू मीट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी दिस बाई 500 गीगावाट। आपको जैसे मैंने बताया कि 1 गीगावाट का मतलब होता है करीब करीब 10⁻6 मेगावाट। तो जो 5 लाख हम जो है मेगावाट जो एनर्जी हम जनरेट करें बाई 2030 तक, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी
से करेंगे, हम कोयला और इनसे ना करके हम इतनी एनर्जी हम इससे बाई 2030 हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सों से बढ़ाएंगे और सोर्स बनाएंगे जो कार्बन न्यूट्रल है। और दूसरा उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर सजेशन दिया कि टू मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट टिल 2030 विद रिन्यूएबल एनर्जी। और जो 50% हमारी ऊर्जा की खपत होगी और 2030 तक, वो 50% ऊर्जा, अगर आपके घर में बिल 200 यूनिट का आता है तो मान के चलिए आपके 100 यूनिट की जो आपकी बिजली आपने खर्च की, वो बिजली आपकी रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर से आई, विंड से आई, या फिर आपकी हाइड्रो से आई, या फिर आपकी बायो एनर्जी से आई। तो 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट टिल 2030 वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। नाउ तीसरा उन्होंने जो पंचामृत को तीसरा पॉइंट था कि रिड्यूस प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाई 1 बिलियन टन बाई 2030, कि 2030 तक हमको 1 बिलियन टन, 1 बिलियन टन मतलब 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। तो 1 अरब टन, 1 अरब टन मतलब 100 करोड़ टन। 1 बिलियन इज 100 करोड़ टन। 100 करोड़ टन हमें CO2 का एमिशन घटाना है 2030 तक। और फिर उन्होंने जो चौथा पॉइंट दिया पंचामृत में, वो पॉइंट था कि रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ एन इकोनॉमी बाई 45% बाई 2030, कि हम जो इतनी कार्बन हम एफिशिएंसी बढ़ा दें अपनी इंडस्ट्री की, कि जो हमारा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है, जो हमारा GDP जो आ रहा है, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, सेम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमको 45% ऊर्जा कम खर्च करनी पड़े। तो हम ये एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू और कार्बन इंटेंसिटी के थ्रू ये पढ़ा है। और फिर उनका जो 5वां पॉइंट है पंचामृत का, लास्ट पॉइंट इज अचीव नेट जीरो बाई 2070, कि 2070 तक, मतलब आने वाले इस करीब 47 सालों में हम ऐसा करें कि हम जो जो जितना भी हम एनर्जी यूज करें, उससे उससे क्या है कि जितना हम एनर्जी यूज करेंगे वो ऐसे सोर्सों से बने जो कार्बन न्यूट्रल हो। और जो कार्बन न्यूट्रल हो मतलब जो हमारा जो एमिशन हो वो नेट में जीरो हो। तो भाई वैसे तो ये जो कॉन्फ्रेंस का और पार्टी थी COP26 नवंबर 2021 में जो इंग्लैंड में, उसमें भारत पे बहुत प्रेशर था कि हमें इसे बाय 2050 तक करें। लेकिन हमें पता है कि 2050 तक हमारा करना इतना आसान नहीं है। तो भारत ने जो गोल दिया वो दिया कि हम 2070 तक, 2070 तक हम जो हमारे एनर्जी रिलेटेड एमिशंस हैं, तो वो सब हम नेट जीरो कर देंगे बाई 20 हम जो है वी विल अचीव द नेट जीरो गोल बाई 2070। फिर ना इसके लिए बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, एक जो टेक्नोलॉजी है कि हम कार्बन को कैप्चर ही कर लें, कार्बन को कैप्चर कर लें और कार्बन कैप्चर करके हमको उसको यूटिलाइज करें और स्टोरेज करें। और फिर कार्बन कैप्चर के हम यूटिलाइज स्टोर करें या फिर हम उससे कुछ दूसरी चीज बनाते हैं जिससे कि वो परमानेंट स्टोर हो जाए। So basically the role of carbon capture, utilization and store in climate change mitigation has been a topic of discussion for many decades. And the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, special report on global warming of 1.5 degree and the recent series of announcements made by the nations on net zero have enthused the proponents of this technology, given the potential the technology can play in reducing emissions. Means in nutshell, you can say, India too has made commitment to become net zero by 2070, as I just told you by Panchamrit. Addressing a 26th COP, Glasgow conference, Prime Minister announced the Panchamrit to mitigate climate change, including achieve net zero by 2070. And उसके बाद में various steps, including promoting renewable energy, alternate energy sources like solar, wind, hydrogen, reducing emission from vehicles through adoption of, Bharat Stage 6 norms. जो आप देख रहे हैं आज की जो गाड़ियां आ रही हैं हम खरीद रहे हैं, वो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स की है। लेकिन जो जिनके पास 2010 या उससे पहले की गाड़ियां हैं वो भारत स्टेज 4 नॉर्म्स की हैं। तो इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, promoting research and development, adoption of carbon neutral technology like this CCS and CCUS, carbon capture and storage, carbon capture, utilization and storage have started gaining prominence. ये जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ CCS and CCUS, ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है। इनको आजकल अभी इंजीनियरिंग में पढ़ाया भी नहीं आता है बीटेक वगैरह में। ये बहुत रिसर्च की टेक्नोलॉजी है जो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज लास्ट टू लास्ट मंथ मैं
नॉर्वे में था, वहां जैसे मैं ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही एक जो बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया था एक मीटिंग में। तो वहाँ ये नॉर्वे इस मामले में काफी, ये टेक्नोलॉजी वहाँ काफी ये समृद्ध अवस्था में है, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए वो अभी रेडी है टेक्नोलॉजी। अब बस भारत में भी काम हो रहा है, भारत में पायलट प्लांट बन रहे हैं कि हम कैसे ये कार्बन कैप्चर को यूटिलाइज कर लें और उसको स्टोर करें। तो ये बहुत सारी कई सिस्टम्स हैं, मेथड्स हैं कार्बन कैप्चर सिस्टम, CO2 कैप्चर टेक्नोलॉजी के। पोस्ट कंबशन कैप्चर है, प्री कंबशन है, ऑक्सी फ्यूल कंबशन है, डायरेक्ट एयर कैप्चर है। तो इसमें जो अभी सबसे ज्यादा जो इस पे बहस चल रही है वो है पोस्ट कंबशन कार्बन कैप्चर। जैसे आपके जो कोल, इसमें क्या है, इसकी सबसे ब्यूटी ये है इस टेक्नोलॉजी की कि अगर आप कोल जला के आप बिजली बना रहे हैं तो जो एमिशन निकल रहे हैं तो आप कोल जला के बिजली बना सकते हैं, लेकिन जो एमिशन निकल रहे हैं उसको आप कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करने के बाद आप उसको एब्जॉर्प्शन कराएंगे, मेम्ब्रेन से एब्जॉर्प्शन कराएंगे, उसके बाद आप उनको क्रायोजेनिक, माइक्रोबियल, एल्गल चीजों में बदल देंगे या प्रोडक्ट्स में बदल देंगे। तो वो सब जो है ये दी बेसिकली दी बेसिकली एनर्जी जो आप जो बना रहे हैं, जो एनर्जी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि कार्बन आपने कैप्चर कर लिया, उसको आपने कैप्चर करके या तो स्टोर कर लिया या फिर आपने दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जैसे टेक्नोलॉजी है ये डायरेक्ट एयर कैप्चर है, और ये मेम्ब्रेन बेस्ड एडजॉर्प्शन, मैं बस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी टेक्निकल है ये। तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी ये आने वाले दिनों में, आप में से आने वाले 5 या 10 सालों में ये टेक्नोलॉजी काफी प्रोमिनेंट हो जाएगी। खासतौर से ये आपकी जो पोस्ट कंबशन जो टेक्नोलॉजी है, जिसको आप, उससे क्या हुआ कि आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो आपके थर्मल पावर प्लांट है जिनको कह रहे हैं कि आप कोल बेस्ड एनर्जी बहुत पॉल्यूटिंग है, जो थर्मल पावर प्लांट्स है आपके कोल बेस्ड, दे विल बिकम द ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट। वो एमिशन तो करेंगे, लेकिन जो एमिशन होंगे आप उनको कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करने के बाद आप उनको या स्टोर कर लेंगे या फिर उनको किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ये, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रिस्क है। रिस्क क्या है, जैसे ये पावर स्टेशन है, यहाँ फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब आप कोयला जला रहे हैं या फिर गैसेस फ्यूल जला रहे हैं, उससे आपके CO2 के बहुत सारे एमिशन निकल रहे हैं, जिसको बोलते हैं चिमनी से जो धुआं निकलता है, जो एमिशन निकल रहे हैं आपकी चिमनी से, वो उनको हम कैप्चर कर लेंगे। और कैप्चर करने के बाद वो कैसे यूज करेंगे, या तो आपको वो ये पाइपलाइन के थ्रू आप कोल डिपोजिट, जहां से आप कोल निकाल चुके हैं, जो आपका जो वहां पे जो वॉइड जो खाली स्थान है उसमें आप इनको इंजेक्ट कर देंगे, या जहां से आप ऑयल निकाल चुके हैं उन कुओं में वापस कर देंगे CO2 को, या फिर आप इनका जियोलॉजिकल स्टोरेज कर देंगे, इनको जमीन के अंदर परमानेंट दफन कर देंगे इनको CO2 को, जो आपके एमिशन है, तो वो आपका इनको कैप्चर कर लेंगे, और इस तरह से आप जो है ये धरती का तापमान बढ़ने से रोकेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक इसमें रिस्क ये है कि क्या गारंटी है कि 10 साल या 20 साल के बाद ये लीक नहीं करेंगे, और लीक होने के अगर लीक होते हैं तो फिर एटमोस्फेयर में वापस चले जाएंगे। तो दूसरी टेक्नोलॉजी जो बहुत प्रोमिनेंट है वो है एमीन बेस्ड सॉल्वेंट एमिशंस। तो ये बेसिकली मिटिगेटिंग टेक्नोलॉजी है, बट ये अभी करेंटली हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी में आती है, बट आने वाले दिनों में इसकी कीमत गिर सकती है। तो ये एमीन बेस्ड जो सॉल्वेंट एमिशंस है, इसमें क्या है कि आप जो आपकी जो CO2 एमिशन है उनको आप कैप्चर कर लेंगे, लेकिन इसके कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। ये मैं अभी तिरची में था 3 महीने पहले, तो वहाँ एक सस्टेनेबल एनवायरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो ये द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट कंबशन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी ऑन वेजिटेशन, सॉइल एंड वाटर पे क्या असर पड़ेगा इसका, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमारे जो पर्सपेक्टिव है, जो टेक्नोलॉजी है, उनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, उसके ऊपर एक मेरा एक लेक्चर था। इसमें ये तिरुचिरापल्ली तिरची में ये एक बहुत पुराना ये बिशप हैबर कॉलेज है, वो काफी बड़ा कॉलेज है, सो मेरा ये लेक्चर था। नाउ दिस इज गवर्नमेंट एफर्ट्स टू डेवलप CCUS टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया। अब भारत में ये जो टेक्नोलॉजी है, ये CCUS टेक्नोलॉजी, ये जर्मनी में, नॉर्वे में ये काफी पॉपुलर हुई है, लेकिन इंडिया में अभी ये पायलट स्केल में ही है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। अभी हमने इसको कॉमर्शियल लेवल पर भी अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन हालांकि कुछ इंडस्ट्री इसको पायलट स्केल पे चला रही है। तो इसमें ये है कि आप जो आपके CO2 एमिशन निकलेंगे, जो चिमनी से आपकी जो एमिशन है, धुआं जो निकल रहा है चिमनी से, CO2 एमिशन है, उसको आप रिन्यूएबल एनर्जी से आप हाइड्रोजन बनाएंगे और CO2 को कैप्चर कर लेंगे, और कैप्चर करने के बाद आप न्यू कैटालिस्ट टेक्नोलॉजी लेके या न्यू प्रोसेस टेक्नोलॉजी लेके आप उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो CO2 आपने कैप्चर किया, तो CO2 को आप CO2 कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, CO2 को आप कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट आप किस में कर देंगे, आप पॉलीकार्बोनेट पे कन्वर्ट कर देंगे। जो आपके जो फाइबर ग्लासेस हैं उसमें आप वो CO2 को वो लेके आप उनसे फाइबर ग्लास भी बना सकते हैं। फिर आप पॉली यूरेथीन कुछ ऐसे आप
प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे कि जो जितने भी जो आपके एमिशन है वो डायरेक्ट एकदम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. Now, government efforts to develop CCUS, carbon capture, utilization and storage within India. जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स है वो जैसे सेट नेट जीरो टारगेट्स, इंडिविजुअल स्टेकहोल्डर्स ऑफ द अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वैल्यू चेन may be asked to set their individual net zero targets and roadmaps with a definitive timeline to achieve them. And also the present emission figures of all companies may be recorded and robust mechanism may be devised to monitor the emissions from point sources of the upstream. This basically exploration and production industry. Now यहाँ पर क्या है कि पॉइंट ये है कि ये टेक्नोलॉजी सेट नेट जीरो टारगेट्स. नाउ नेट जीरो टारगेट जैसे बाई 2070 तक हमको नेट जीरो करना है. तो जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो भाई आने वाले दिनों में दे हैव टू प्रिपेयर फॉर नेट जीरो. तो जो उनके एमिशंस है वो नेट जीरो होनी चाहिए. तो नेट जीरो एमिशंस करने के लिए वो ये कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे. तो ये सीसीयूएस टेक्नोलॉजी जो है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सीसीयूएस टेक्नोलॉजी है, वो बहुत प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है आने वाले दिनों में. नाउ इसमें एक चीज है इंक्लूजन ऑफ सीसीयूएस एंड सीसीयूएस कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इन नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान में हमको डालना है. Now, carbon CCUS technology may be included in the National Climate Action Plan as a part of a long-term strategy for mitigating climate change. Inclusion of like CCUS in non-attainment जो industries है shall bring focus on the this carbon capture and utilization and storage technology, and we have to create amenable conditions for investment. Now, tailor-made policy combining incentives with penalties needs to be formulated for India for more prudent approaches are likely to be like provide financial support for feasibility studies for early mover projects. Like जो आपकी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो क्लीन टेक्नोलॉजी है, उनको अडॉप्ट करने के लिए पैसा चाहिए. तो इंडस्ट्री को वी हैव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू फाइनेंस दीज इंडस्ट्रीज to give the basically the support for finance support so that they can adopt early and they can move towards the net zero objectives by adopting these technologies and establish and propagate carbon markets. Now those industries which are arresting the carbon, or they are not emitting the carbon, or they're saving the carbon, or they are reducing the carbon from escaping to the atmosphere, so these industries should be given they should be given the benefits of carbon credits. So whatever the carbon basically they are saving, those carbon credits they should be given to encash the carbon credits so that they can get it converted into the financial they can improve the financial health. This will improve the financial health of the industry. Then provide tax benefit, tax credit to carbon capture and utilization and storage and carbon capture and storage technology or equipment owners, because the equipment may be costly. So to provide the tax credit, tax benefits, and provide the viability gap funding for commercial projects at concessional rates, and reinforce public awareness and enhance their participation, and set up a robust and transparent support system. Successful and effective deployment of carbon capture, utilization and storage, carbon capture and storage technology requires the presence of independent, transparent regulatory mechanism body with clearly defined roles and responsibilities. So now the providing funding to support capital and operating cost for early projects. जो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, आपकी ग्रीन टेक में जो प्रोजेक्ट्स अर्ली लेके आ रहे हैं, उनको क्या है कि वी हैव टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट, capital and operating support, and grant funding programs can play a key role in supporting early CCUS and CCS adoption, and develop a geological CO2 storage atlas. So this develop a geological CO2 storage atlas, we have to make a geological storage map for India, those locations where
this CO2 can be stored, geological in geological depletions or geological, reservoir permanently. So those areas where the water is brackish or not fit for drinking, or there is a hard water, those areas, or there is a gap when you extracted the oil and gas from the earth, and those voids where you can inject the CO2 for permanent storage. So this access to storage sites will pose a significant challenge to widespread deployment of CCUS technology, and develop and adopt norms for transparent and effective reporting, monitoring, and verification. So for the mitigating measures, now this is also important ki how much CO2 emissions are reduced by particular industry, but what they claim for the carbon credit. Now you have to do the effective reporting, how much actually they have reduced. So who will do the monitoring and verification for these emission reductions for the mitigating measures in CCUS technology and CCS technology. Now, rules and standard mechanism to report, monitor, and verify the reduction in CO2 and greenhouse gas emissions should be set up. Now, किस इंडस्ट्री ने कितना CO2 emission reduce किया, किस इंडस्ट्री ने कितने ग्रीन हाउस गैस emissions बचाए, ना उनकी जो मॉनिटरिंग है कितने टन का उन्होंने CO2 emissions और ग्रीन हाउस गैस emissions को एटमॉस्फेयर में जाने से इंडस्ट्री ने रोका, और तो उनके लिए मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन करना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली दोस विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन क्रेडिट्स. So now action by the Indian industry to make the Indian industry green, or to basically move forward for the net zero. Public sector industries like NALCO, ONGC, BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited taking up these carbon capture and storage pilot plants since 2021. So NALCO has commissioned a pilot demonstration CO2 sequestration plant. ONGC has also signed a memorandum of understanding with IL&FS. This is basically a company, and Tamil Nadu Power Company also in 2018 to inject CO2 captured at their plant into the oil fields of ONGC Kaveri Basin. So now the ONGC and Indian Oil Corporation Limited have signed the memorandum of understanding MOU for CO2 based enhanced oil recovery also. And by injecting CO2 captured from IOCL plant, and the effort aims to reduce India's carbon emission targets set forth in COP21. COP21, this is a conference of party 20 which was held in Glasgow in UK, while enhancing production from domestic fields. Now, according to the estimates, the ONGC enhanced oil recovery. एक्चुअली एक नई टेक्नोलॉजी है ये एनहांस ऑयल रिकवरी के, जो आपके जो तेल के कुएं हैं जहां से आप क्रूड ऑयल निकालते हैं, पेट्रोल डीजल जहां से निकाला जाता है, जहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, ओएनजीसी के जो ऑयल वेल्स हैं, कुएं हैं, तो उनसे जब आप ऑयल निकाल लेते हैं, जब आप ये क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं पूरा, तो वो जमीन खाली हो जाती है नीचे, जिसको बोलते हैं कि ये पूरा डिवॉइड है नीचे, जो गैप हो गया. तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप इसको बोलते हैं एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, EOR. तो आप जो CO2 है, जो कार्बन, जो धुआं है, जो आपका जो चिमनी से जो आपके जो पॉल्यूशन निकल रहा है, CO2 जो निकल रही है, उसको आपने कैप्चर किया और उसको उसमें इंजेक्ट कर दिया वेल में, जो ONGC के वेल जहां से आप पहले से ही ऑयल निकाल चुकी है. तो एनहांस उससे क्या है कि आपकी दूसरी साइड से जो ऑयल का जो दूसरा बेल का जो दूसरा जो माउथ है, उससे क्या हुआ कि आप जब CO2 को इंजेक्ट करेंगे तो प्रेशर से जो सब बचा हुआ ऑयल है, जो नहीं निकल पाया, जो बच के उसमें रह गया, जो कुएं में रह गया, तो एनहांस्ड ऑयल रिकवरी आप उसको भी निकाल सकते हो, और CO2 को आपका जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैस के, वो आप उनको आप क्या करेंगे कि उनको आप CCUS कार्बन कैप्चर करेंगे और स्टोरेज कर देंगे आप परमानेंटली, जिसको बोलते हैं कि, और उससे आप एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, आपको दो फायदे होंगे. एक तो आपका फायदा ये है कि आप कार्बन न्यूट्रल हो गए, आपने CO2 को इंजेक्ट कर दिया जमीन में, और उसके बदले में जो वहां जो ऑयल था वो प्रेशर की वजह से एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, वो आपका तेल के कुएं से आपका ज्यादा तेल निकला, वो अभी ऑयल आपको वापस मिल गया जो बचा हुआ था. So this, according to the estimate, ONGC is doing this enhanced oil recovery project, and this has the sequestration potential of around 5 to 8 million metric tons. मतलब आप देख रहे हैं कि करीब करीब 50 से लेके 80 लाख टन, मिलियन मतलब 10 लाख, करीब 50 से 80 लाख टन लिमिटेड ऑफ CO2 थ्रू
स्ट्रक्चरल सॉल्युबिलिटी एंड रेजिडुअल ट्रैपिंग के माध्यम से आप उसको कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, आप उसको स्टोरेज कर सकते हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस को ना। और इसके अतिरिक्त एडिशनली प्राइवेट प्लेयर लाइक डालमिया सीमेंट है, ये बहुत बड़ी लीडिंग इंडस्ट्री है, वो ऑल्सो दे आर एक्सप्लोरिंग द एडॉप्शन ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी और चेंजिंग नैरेटिव्स टुवर्ड्स द prospects of implementing carbon capture storage CCUS technology across the globe, including India, are evident, primarily driven by climate change mitigation ambitions. The assessment highlights the following points. India, in India, however, this technology is far from becoming mainstream, but the government of India and the Indian industry are trying to better understand the techno-economic feasibility. So this techno-economic feasibility or techno-economic analysis is known as TEA, techno-economic analysis and स्केलेबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कि ये जो अभी पायलट प्लांट आपके प्रोजेक्ट है वो उसको कहाँ तक आप स्केल कर सकते हैं, किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, कि आप जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट है, बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्री है, उनमें कार्बन कैप्चर स्टोरेज आप कर सकते हैं या कर पाएंगे। तो इसकी आप स्केलेबिलिटी के ऊपर भी आप बहुत सारा इसमें अध्ययन करने की जरूरत है। नाउ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर लीडिंग द वे फॉरवर्ड द प्रमोशन ऑफ कार्बन CCS टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज basically, and carbon capture and utilization technology facility, while recognizing the need to stay carbon neutral in the broader context of the sustainability and competitiveness. आप देख रहे हैं कुछ इंडस्ट्री है, आई हैव विजिटेड दिस इंडस्ट्री। ये जो आपका ये जो एक जो इंडस्ट्री है आंवला बरेली के पास ये प्लांट है आपका, ये फुल प्लांट इज नियर इलाहाबाद। सो लार्जेस्ट ये कुछ प्लांट है जो लार्जेस्ट CCUS प्लांट्स इन इंडिया है, लाइक इफको फूलपुर, इफको आंवला और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बीजापुर, एंड दिस NFHCL काकीनाडा, ये बेसिकली इन आंध्र प्रदेश। दीज प्लांट्स, ये प्लांट CCUS प्लांट है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन इन स्टोरेज के प्लांट है इन फर्टाइल इंडस्ट्री में। they are doing the urea production, and in urea production whatever the greenhouse gases are emitted into the atmosphere all are captured and they are stored permanently and or they are utilized. अभी देखते हैं ट्यूटिकोरिन अल्कली केमिकल्स प्लांट है, मैंने इसको भी विजिट किया था ट्यूटिकोरिन में, ये तमिलनाडु प्लांट है। तो इसमें क्या है कि 10 मेगावाट CO2 कैप्चर टू केमिकल्स प्रोजेक्ट इन इंडिया। बेसिकली ये जो इनका थर्मल पावर प्लांट है उससे जो CO2 निकलती है, जो भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, उसको इस प्लांट पर ले जाके वो क्या करते हैं कि इस प्लांट पर ले जाके दे कन्वर्ट दी CO2 इनटू द केमिकल्स। और केमिकल्स में क्या दे आर मेकिंग बेसिकली सोडा एस। जो सोडा एस जो आपका जो वॉशिंग पाउडर होता है, जो आपका जो वॉशिंग सोडा होता है, दे आर मेकिंग दिस वॉशिंग सोडा with they are using the technology of CCSL technology, कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस लिमिटेड। बेसिकली ये IIT खड़गपुर के ये बेसिकली ये स्टूडेंट रहे हैं और केमिकल के, इन्होंने कंपनी खोली है कार्बन कैप्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है, बट ये इंडियंस है। तो दे आर बेसिकली दिस ट्यूटिकोरिन अल्कली केमिकल्स प्लांट इज यूटिलाइजिंग दिस कार्बन क्लीन टेक्नोलॉजी एंड दे आर कैप्चरिंग 168 टन पर डे, 168 टन पर डे ये कार्बन कैप्चर ये कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन का प्लांट है, बिकॉज यूटिलाइजेशन कार्बन कैप्चर करके दे आर कन्वर्टेड इनटू दीस ग्रीन हाउस गैसेस, और कार्बन कैप्चर करके दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू द सोडा एस, जो वॉशिंग सोडा है उसमें कन्वर्ट। तो ये टैक प्लांट है, ये ट्यूटिकोरिन अल्कली केमिकल्स लिमिटेड, ये काफी so they are basically pioneer in this technology and they are converting all this CO2 into the usable product. So those products which can be utilized, so this plant is using this CCUS technology in there, and they have integrated this technology into the their mainframe. Now on the front of national center of excellence on carbon capture and storage also have come up. So these center of excellence will facilitate capturing and mapping of the current research and development and innovation activities in the domain, and also develop networks and researchers, industries and stakeholders with coordination and synergy between partnering groups and organizations. And the center will act as a multidisciplinary long-term research, design and development, collaboration
capacity building hubs for state-of-the-art research and application-oriented activities, initiatives in the field of carbon capture and utilization. 2022 तक नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन ये आईआईटी बॉम्बे में खोला गया लास्ट ईयर, और नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन ये बेंगलुरु में भी खुला। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली दे हैव टेकन द एक्शन to open the center for excellence for the carbon capture utilization and storage. In IIT Madras is also working on the carbon capture utilization and storage. And 2018 में IIT Madras and carbon capture and utilization lab and the energy consortium they made. बहुत सारे other institutions in IIT Warangal have worked on the various carbon capture utilization and technologies in calcium looping. And you see this, what is the public perception about the carbon capture utilization and storage? The major public concern relates to the potential leakage and its impact on the ecosystem and the environment. जो एक कंसर्न है कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। बेसिकली द पब्लिक परसेप्शन अगर देखा जाए तो द एंटायर सीसीयूएस सिस्टम प्रोसेस मस्ट बी सेफ, इस प्रोसेस पूरी सेफ होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड रेगुलेशन, इसके कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और ये ओवरसाइट एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट रेगुलेशन, क्लियर बेनिफिट जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको अगर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है थर्मल पावर प्लांट्स में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, तो व्हाट विल बी बेनिफिट्स फॉर द लोकल कम्युनिटीज, हाउ द the meaningful local engagement can be done for this using this technology, minimize disruption to local residents, जो local residents है उनका कहीं, because ये टेक्नोलॉजी में emissions हैं जो जब आप कैप्चर कर रहे हो to capture the CO2. So when you capture the CO2, it is said that there are some disruptions to the local residents. There may be some emissions, environmental emission into the atmosphere. And second point, what is the guaranteed contribution to net zero when you are going for CCS, carbon capture and storage? So what is the guaranteed contribution to net zero? Like there are doubts, there are apprehensions that when CO2 will be stored permanently in the rocks, in the ground, in the earth, then what is the guarantee that CO2 will not leak over the time from the cracks of the in the rocks, or from the cracks from the belts where the CO2 is completely embedded or buried? So guaranteed contribution to net zero should be there, that CO2 will not leak in the escape into the atmosphere again. Cost effective and timely, and it should not be very costly, it should be cost. One of the several measures to reaching net zero. Now limit damage to wildlife and natural environment is very important aspect of this technology, that when this technology will come on a mass scale level, particularly in thermal power plant, coal-based power plant, then what will be the damage of this technology on the wildlife and natural environment? How the wildlife will be affected? How this will pollute the groundwater, surface water, soil, flora, fauna, or it will be safe enough? Now, transparency in funding and rewarding the projects. This should be perfect, transparency in funding and rewarding the project, that should be there. लेकिन इसमें in order to achieve the goals of the Paris Agreement, a transition to a low carbon economy is essential to combat climate. जैसे कि बताया कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें आपको लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, आपको ऐसी इकोनॉमी की तरफ जाना होगा जिसमें कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। तो जैसे कि आप देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोल बेस्ड हैं, वो लो कार्बन इकोनॉमी में नहीं आते। तो अब लेकिन आप आने वाले दिनों और ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आपको इतनी अभी भी आप 60% जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो कोल से करते हैं, 40% आपकी न्यूक्लियर से, हाइड्रो पावर से, और करीब करीब 20-25% आप कहते हैं कि आपकी एनर्जी सोलर से और विंड से आती है। लेकिन सोलर एनर्जी के भी अपने बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं कि सोलर एनर्जी अवेलेबल ओनली इन डे, इट्स नॉट अवेलेबल नाइट। विंड एनर्जी में भी देयर इज सम एप्रीहेंशन कि विंड एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड, अगर विंड नहीं है तो एनर्जी भी नहीं होगी।
so constant supply may be restricted. So carbon, we have to use the coal for power generation in days to come. आने वाले बहुत सालों में हम कोल यूज करेंगे, लेकिन जो है कि हाउ वी कैन गो इट, मेक ए ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी. सो लो कार्बन इकोनॉमी के जाने के लिए आपको ये CCS एंड CCUS जो आपकी टेक्नोलॉजी है, दे आर प्रॉमिसिंग फॉर यू. वो आपको एक वायदा करती है कि आप अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो आप जो जो आपके कार्बन एमिशन है उनको आप कैप्चर कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और आप एटमोस्फेयर में नहीं जाने देंगे, कंप्लीट उनको डाइवर्ट कर देंगे प्रोडक्ट्स में. तो ये लो कार्बन इकोनॉमी बहुत एसेंशियल है टू कॉम्बैट climate change. Now, zero or negative carbon technologies are available. Basically, the key goal of CCUS is to achieve an environmental benefit by removing a large quantity of CO2 from the atmosphere. और इसको करने में, in doing so, help redress some of the problems associated with the climate change. Now, this sustainable approach is needed. Sustainable approach is needed to look beyond the future and identify key risks and mitigations to challenges identified for the feasible use of CCUS technology. जो CCUS technology है, this technology is I told you this technology is a recent new technology. Even this technology has not penetrated fully into the market. In India also, this technology is in a pilot project, not scaled up to commercial level. But आने वाले दिनों में ये technology is looking promising. But इसके जो environmental impacts हैं वो पूरी तरह से स्टडी नहीं हुए हैं. दोस्त, environmental interest भी हमको एड्रेस करने होंगे जब हम इस टेक्नोलॉजी को बहुत लार्ज स्केल पर, अगर इस टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे. Now, India's contributions represent the utmost ambitious action in the current state of development. It incorporates our development challenges and priorities. Recent decisions for government represent a quantum jump in our aspiration and demonstrate unparalleled vision. And India's development plans will continue to lay a balanced emphasis on economic development and environment. And India expects an ambitious, equitable, and effective global agreement in Paris. So, abhi recent initiatives of the government to combat the climate change, to mitigate this as a mitigating measures of the climate change, revisiting national missions, creation of new mission, and enhancing of targets like mitigation initiatives taken by the government of India on the front of renewable energy. Like target was 175 gigawatt and national solar mission of from 20 gigawatt से लेकर 100 gigawatt कर दिया गया. कोची एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी. आपने देखा होगा कोची का एयरपोर्ट कभी जाएंगे तो ये दुनिया का पहला एक ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी एनर्जी कोची एयरपोर्ट की आपकी सोलर एनर्जी से आती है. आपके बहुत सारे, आप जब हाईवे पर जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे जो सोलर प्लाजा हैं वो सोलर पावर्ड हो गए हैं. जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में आप लोधी रोड पर एक अच्छे ऊर्जा भवन है, वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड है. Delhi Metro and the MRTS, they are also, reducing the pressure on the public transport. So they are providing a very rapid and fast transport system, and thereby they are, they are saving the carbon credits. And National Smart Grid Mission and Green Energy, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नेशनल स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर्स और स्मार्ट ग्रिड एंड ग्रीन, जब ऊर्जा को, एनर्जी को, बिजली को जब हम 100 किलोमीटर तक जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रिड के थ्रू, तो ऐसा माना जाता है कि 100 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने में 10% एनर्जी, अगर 100 मेगावाट आप लेके जा रहे हैं तो वो लास्ट में 100 किलोमीटर के बाद 90 मेगावाट रह जाती है. जो इंडिया में हमारे जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे बहुत ज्यादा थे, 20% 25% थे, जबकि डेवलपिंग कंट्री में 5 से 10% होते हैं, तो वो हमने कम किया है. So National Smart Grid Mission and Green Energy Mission, we have already launched. We have launched the Green Energy Corridor for efficient transmission and our distribution network. There is Swachh Bharat Mission. Swachh Bharat Mission, 100 smart cities. गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे सिटीज 100 सिटी सिलेक्ट किए हैं पूरे भारतवर्ष में
जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, जैसे आगरा सिटी, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी, बरेली स्मार्ट सिटी, चंडीगढ़ तो इज ऑलरेडी स्मार्ट सिटी। तो बहुत सारे सिटी ऐसे हैं जो पहले से बहुत एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, या जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता था, उनको स्मार्ट सिटी बनाने का काम चल रहा है, और बहुत सारे स्मार्ट सिटी बन भी चुके हैं। तो ये स्मार्ट सिटी से ये है कि जो आपके जो अधिक से अधिक इनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महत्व दिया जाए, जिससे कि आपके जो कंजेशन है, आपके जो बहुत सारा जो सिटीज के अंदर जो पॉल्यूशन है, स्मोक है, धुआं है, वो कम हो, और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े, जिससे कि आपका पॉल्यूशन भी कम हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो। नाउ अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन रिन्यूअल ऑफ 500 सिटीज, जो उनका अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करना है बहुत सारी सिटीज का, उनका भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है। नाउ ये जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट टू एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी हमें बनानी है। अगर किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो प्रोडक्ट वापस जाता है, वापस जाए तो फिर उसको बनाने में दूनी ऊर्जा लगती है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिनमें कोई इफेक्ट नहीं हो, कोई जीरो डिफेक्ट हो, जीरो इफेक्ट हो। तो दे विल ऑल्सो इंक्रीज दी एफिशिएंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। नाउ ग्रीन हाईवेज पॉलिसी, जैसे कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ग्रीन हाईवेज पॉलिसी की जितने भी आपके हाईवेज है उनको ग्रीन किया जाएगा। 1,40,000 किलोमीटर जो आपके हाईवेज है उनके दोनों तरफ ट्री प्लांटेशन होगा। उस ट्री प्लांटेशन के लिए पैसे का भी जैसे एक ईयर मार्क किया गया है कि आपका जो जितने भी हाईवेज में जो आपकी लागत आएगी उसका 1% आप ये हाईवे के दोनों तरफ वृक्ष लगाने में उसको यूज किया जाएगा। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जो आप देख रहे हैं जो व्हीकल आने वाले दिनों में, और जो व्हीकल अभी आ रहे हैं वो आपके हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं। अभी जो आपके जो पेट्रोल इंजन है वो डुअल फ्यूल इंजन में आ रहे हैं, जिनमें आप 20% इथेनॉल मिला सकते हैं, E20 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल। जैसे हाइब्रिड हाइब्रिड व्हीकल में आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बैटरी पे भी चला सकते हैं, आप पेट्रोल पे चला सकते हैं, दोनों पे आपकी ऑप्शन होगा। तो इससे व्हीकल सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कंट्रीज पैसेंजर कार्स में व्हीकल फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स भी फाइनलाइज हो चुके हैं, और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज आल्सो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आपका जो एयर क्वालिटी है, जो एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, जब एयर क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो इसका मतलब आप कम से कम एमिशन कर रहे होंगे, आपके टेल पाइप एमिशन कम होंगे, आपके चिमनी के एमिशन कम होंगे, आपके ट्रांसपोर्ट से एमिशन कम होंगे, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आप जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसको आप रोकेंगे, उनको कम करेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे नेशनल एडाप्टेशन फंड, रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। फॉसिल फ्यूल से गवर्नमेंट ने सब्सिडीज कम कर दी है। कोल पे भी जैसे सेस बढ़ा दिया, पहले 50 रुपए पर टन था, लेकिन अब 200 रुपए पर टन कर दिया, जिससे कोल का इस्तेमाल लोग जुडिशियसली और बहुत हाई एनर्जी एफिशिएंसी के साथ करें। टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इंडिया ने बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इससे नेशनल सोलर मिशन, और पहले जो 20 मेगावाट से 100 मेगावाट की तरफ हमने जो एक लिया है कि हम 1 लाख मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी से बनाएंगे। नेशनल मिशन ऑन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी के सेक्टर में जो आपके मोटर्स हैं, आपकी जो लाइटिंग है, उन सबकी एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, जिससे कि आपके एमिशंस कम हो। तो ये मिटिगेशन मेजर्स इसमें रहेंगे। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। आपका जो हिमालयन इकोसिस्टम है, आप देखोगे हिमालय में कभी कभी फॉरेस्ट फायर होती है, आग लगती है, तो वो जो आग लगने से कितना आपका जो कार्बन स्टॉक है, जो जो कार्बन का स्टॉक है, जो 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 वृक्षों के तनों में जो कार्बन है वो जल जाता है, और जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं। उससे क्या है, सब भी कार्बन एमिशन ये सब एटमॉस्फेयर में जाता है। तो इसका कैसे रोक सकते हैं, तो इसके ऊपर नेशनल मिशन सस्टेन लॉन्च किया गया। नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन एनर्जी, नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंडिया। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाइक ड्रिप इरिगेशन, और बहुत सारे जो जो आपके इरिगेशन के ऐसे मेथड जिनमें आपको कम से कम ऊर्जा की खपत हो। आपको ऐसे जो सीड्स हैं जो कम से कम जो जो पानी का इस्तेमाल, कम से कम पानी में जो
इस्तेमाल करें। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चला है कि by the government of India's initiative, this year is basically named as the International Year of Millets। तो जैसे आपकी जो ज्वार की खेती है, जो वैसे जो आपके मोटे अनाज हैं जिनको इस्तेमाल जिनका कम हो गया था, लेकिन अब आने वाले दिनों में इनको प्रमोट किया जा रहा है। अभी G20 की जो मीटिंग चल रही है उसमें भी ऐसा मैं टीवी पर देख रहा था कि जो हमारे विदेशी मेहमान हैं उनको जो मोटे अनाज हैं, जिनको बोलते हैं, जो आपको जो 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 कोर्स ग्रेन्स हैं, जो आपके जो मिलेट्स हैं, उनमें उनको प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए उनका प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पानी की बहुत कम खपत करते हैं। और जिससे बिजली की काफी बचत होती है कि हम पानी की खपत करते हैं, उसके लिए हम बिजली से पानी जमीन से खींचते हैं और हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर इरिगेट करते हैं पैडी फील्ड को। तो जो पानी की बहुत ज्यादा उसमें खपत होती थी। जो अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो घोषित किया गया उसमें मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ एक बड़ा कदम है। नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग, उनके लिए पैसा एलोकेट करना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन चल ही रहा है। तो नाउ दिस इज लास्ट स्लाइड। वी आर मेड वाइज नॉट बाय द रिकलेक्शन ऑफ आवर पास्ट बट बाय द रिस्पांसिबिलिटी फॉर आवर फ्यूचर। हम ऐसा नहीं है कि हम जो खाली जो वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट से हम लर्न भी करें, लेकिन आने वाले दिनों में कि हम जब भी वाइज होंगे जब हम आने वाले जो हमारी जो जनरेशन है उनको लिए हम एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें। So we will be made wise by the recollection of the past, not only yes, hello everyone। हाँ सर, आपका लास्ट सेंटेंस क्लियर पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ पाया, मेरा नहीं, नेटवर्क थोड़ा खराब सा है। ऑडियो में स्टक हो गया था। सर का नेटवर्क आपका सर लास्ट वाले लाइन में केवल थोड़ा सा। ओके, नाउ वी आर मेड wise नेटवर्क थोड़ा, I think I have shared it। नेटवर्क आपका दिक्कत कर रहा है सर, नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। ओके, आई थिंक हाँ, अभी लास्ट में ही हुआ है सर, पहले तो ठीक था, पहले बीच में एक दो कहीं वर्ड वगैरह का वो था, लेकिन अभी थोड़ा सा, अभी फिर ठीक हो गया सर। अब आ रही है? कैन जी यू जी हियर मी? जी यस जी। सर। I think there was some unstable connection। जी Now it's okay? Am I audible? Yes sir, you're audible sir। Okay। So could we go for question and answer, sir? Yes, sure। Yes, yes। ओके, हमारी आवाज आ रही है ना सर आपके पास? या आपकी आवाज आ रही है, यू आर वेरी मच ऑडिबल। हाँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपका लग रहा है हल्का नेटवर्क जरूर है, थोड़ी सी दिक्कत है। Okay, sir. Thank you very much for the nice presentation. All the participants, they just wrote on chat that it's very nice, informative session. So, एक तो सबसे बड़ी बात है सर, आपने बहुत बार G20 की बात की। हम भारतवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को इसका प्रतिनिधित्व मिला है
अभी आज और कल का जो दिन है हमारे लिए बहुत सारे निर्णायक मुद्दे भी इसमें लिए गए हैं। और मैं ये सुन रहा था सर कि बहुत सारी चीजें जो हैं, जो वर्ड हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं, कार्बन इमिशन की बात कर रहे हैं, जितने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, जब पीएम ने बोला है, बाकी लोगों ने बोला है, जितने न्यूज एजेंसी, यही सारे 3-4 वर्ड हमेशा उसमें जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट की हमेशा बात, कार्बन की हमेशा बात, ये घूम फिर के आ रही है। तो मुझे लग रहा है सर बहुत सही समय पे शायद ये हम कार्यक्रम अपना चला रहे हैं, जब हम भी यहाँ कार्बन इमिशन और क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में ही हो रहा है और हम इसके गवाह हैं, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम का होना अपने आप में एक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं सर। सबसे पहला प्रश्न है मिस्टर अविनाश दिवारियम जी का है। ही हैज आस्क्ड दैट विल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चरल this instrumental implement this electrical agricultural instruments bring about drastic reduction in carbon emission? Is there any strategy or scheme to support this idea? Hope I am clear, sir. देखिए मैं ऑडिबल हूँ? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी मेरी थोड़ा सा आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। यस सर। मैं थोड़ा दरवाजा खोलता हूँ, शायद मेरा नेटवर्क जी जी एक्चुअली वाईफाई जो है वो ड्राइंग रूम में है, तो शायद उसकी वजह से मैंने अभी गेट खोल दिया। अभी आवाज आ रही है साफ? अब ठीक है सर ना। यस सर। हाँ, अब ठीक है। एक्चुअली इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जी वैसे जब अभी आप क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे थे, तो आप परसों का हिंदुस्तान टाइम्स देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का हिंदी वाले अखबार में, हिंदी हिंदुस्तान में, अंग्रेजी हिंदुस्तान, और इस वाले जो हिंदुस्तान टाइम्स है, उस दोनों में पूरा सेंटर वाला जो सेंटर पेज होता है, उनका आया है आर्टिकल। और उसमें सबसे ज्यादा आप देखो 3-4 पैराग्राफ पूरे क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर भी थे। तो आज और कल दोनों दिन आप देखेंगे न्यूज में क्लाइमेट के ऊपर ये बहुत बड़ा एजेंडा भी इसमें G20 में रहेगा, क्योंकि G20 जो है वो पूरे दुनिया की करीब 60% आबादी भी पूरी दुनिया की इन देशों में है। तो बहुत बड़ा समूह है और ये भारत के लिए गौरव की बात है, जैसे आपने कहा कि भारत G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो आपने जो प्रश्न पूछा कि एग्रीकल्चर में क्या हम ट्रैक्टर को इलेक्ट्रिक व्हीकल से चला सकते हैं? नहीं देखो सर। ऐसा है, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम ट्रैक्टर को नहीं, हम चला सकते हैं, लेकिन आप देखिए ट्रैक्टर जो है खेतों में चलता है, और खेत पर आप देखते हैं कि रोड नहीं होता। आप स्कूटी को भी खेत में चला सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्कूटी को तो नहीं, आप रोड पर ही चलाते हैं। तो आप ट्रैक्टर देखो, एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए हैं, या एग्रीकल्चर के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी कोई काम की नहीं है या नहीं यूज। बहुत सारे देखो, हर जगह हर चीज को इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ट्रैक्टर में क्या है, ट्रैक्टर की आपने देखा हो जरूरत होती है, क्योंकि उसके लिए वो तो आपको बहुत हैवी बैटरी का भी वजन काफी बढ़ेगा, और उनको चार्ज करने के लिए भी हैवी बैटरी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो जो अभी आप ट्रैक्टर पर क्यों जा रहे हैं, आपके जो बहुत सारी जो कार हैं उनका वजन भी कम होता है, ट्रैक्टर का अपना भी वजन बहुत होता है। ट्रैक्टर के टायर देखेंगे आपने कि उनका साइज कितना होता है, वो कितने डायमीटर के होते हैं। तो किसानों के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें किसानों के लिए, जो सोलर पंप है, आप 40 फीट 50 फीट 40 मीटर 50 मीटर से आप पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। और खेत में, आपके खेत में कोई बिल्डिंग भी नहीं है, खाली खेत है, आपकी सौर ऊर्जा से भरमार है, आपकी खूब धूप आ रही है खेत में, तो जो सोलर पंप है, किसान सोलर पंप का यूज करें, उससे आपकी बिजली की बचत होगी। और आप जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है,
आप जो पानी जो मतलब इस तरह ऐसे आप मैं देख रहा था कल के अखबार में या परसों के अखबार में कि इस बार जो जो किसानों ने जो आप पैडी जो जैसे चावल की जो धान की फसल बोलते हैं पिछले सालों से 5% ज्यादा खेतों में लगाई है। तो का आई थिंक नेटवर्क स्टेबल नहीं है। क्या रीज्वाइन करने के लिए बोले क्या? हाँ, चलो तो देख- राइट, रिजॉइन करे होंगे सर। थोड़ा अनस्टेबल है तो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। Actually, we want to inform all the participants that sir is was not getting a good connection, so he's rejoining the session. So request you all to kindly wait for that. Also, there was a personal request, like kindly during the session, when the session is going on, uh, at least like don't start posting the message of give the attendance link continuously. It sort of creates a spam, and it also shows a bit of disrespect to the resource person who's giving their time for the sessions, and also to the participants who wait till the end of every session. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कंटिन्यूअसली मत पोस्ट कीजिए, क्योंकि सर भी जो रिसोर्स पर्सन है वो भी मैसेज देखते होंगे, तो वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल रखता है उनके टाइम को। और क्योंकि जो एक्सपर्ट आते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आई फील हमें भी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए उनके टाइम की तरफ। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, इट्स आवर प्रॉमिस दैट वी विल पोस्ट दैट लिंक ऑन टाइम, एंड सेशन जो है 2 आवर्स का होता है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। And the main thing is, Namrata, that people are here to learn. अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप सर आ गए उनको मैं जोड़ दे रहा हूँ नम्रता, लेकिन जी हाँ आप सही बोल रहे हो, बार बार उसको आप करेंगे तो कैसे होगा? आप तो कितने अनुभवी लोग हैं इसमें बैठे हुए, और बच्चों जैसा हम ये भेजते रहेंगे कि भेजिए भेजिए, कॉल कीजिए, कितना बुरा लग रहा है। सर आ गए क्या? मैं एक बार चेक करती हूँ। हम्म, एक्सेप्ट हाँ नहीं। हाँ, सर आ गए हैं, सर प्रमोट किया मैंने सर। Yes, थोड़ा पता नहीं आज थोड़ा इंस्टेबिलिटी हाँ है थोड़ा कनेक्शन में, पता नहीं क्यों। जी जी तो जी। ना अब ठीक है सर, रीज्वाइन होने से बल्कि ठीक ही हो गया, हमको लग रहा है शायद अब थोड़ा ठीक रहेगा। am I audible? यस सर सर। नट्स बेटर। तो जो इनका जो क्वेश्चन था कि जो करने की, लेकिन बहुत सारे और जो चीजें हैं आप उनको जहाँ हम इस्तेमाल जहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत सारी और चीजें हम
सोलर से कर सकते हैं। तो सोलर जो आपके जो नेशनल वाटर मिशन था, जो सोलर नेशनल वाटर के लिए राजस्थान में बहुत सब्सिडी दी गई है भारत सरकार द्वारा, और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आप जो ड्रिप इरिगेशन है उनमें बहुत सारी जो इम्प्लीमेंट्स है उनको आप यूज किए। जी, अभी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं? और इसमें एक दूसरा पॉइंट ये भी था कि ट्रैक्टर को अगर आप ना ठीक अच्छा है सर, आइए ठीक है, आइए। आप बोले। मैं सोच रहा था कि शायद आपने पूरा कर लिया है। सर गो अहेड। नहीं, जैसे इतने ट्रैक्टर्स के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करते भी हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपके पास ये भी आ सकती है कि हर गांव में आपको बहुत बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे। अब एक गांव में 5 ट्रैक्टर हैं, उसके लिए आप चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे तो वो कितना इकोनॉमिक होगा। अब अगर आप किसी शहर में आप कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो कारों के लिए तो ये है कि भाई ऐसा है कि आपके पास परम्परा की आपके पास करीब करीब 2-3 हजार कारें हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो वो प्रॉफिटेबल भी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के लिए आपको खाली इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करना काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा उसको चार्जिंग स्टेशन के लिए भी। तो आ, ये अभी इसे फीजिबल नहीं होगा। सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अविनाश का ही है कि कैन कंप्रेस्ड बायोगैस एन अल्टरनेटिव टू एलपीजी? देखो, कंप्रेस गैस की तो काफी बात चल रही है, काफी बहुत सारे ऐसे हमारे बायोगैस प्लांट हैं जो कॉमर्शियल बायोगैस प्लांट हैं, और इधर हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, जो गैस को और जो जो आपकी जो जो बायोगैस है उसको उसमें से H2S निकाल के उसको कंप्रेस करके वो यूज कर रहे हैं। बट लेकिन अभी पर क्योंकि गैस का प्रोडक्ट बहुत सारे राज्यों में ये इस्तेमाल हो भी रहा है, कंप्रेस करके उसके सिलेंडर में वो सप्लाई हो भी रही है गैस की। Sir, one more question, nicely answered, sir. One more question is, can you please briefly tell us about individual climate change mitigation strategy, if any? क्या, कैन यू रिपीट सर क्वेश्चन? Individual climate change mitigation strategy. इंडिविजुअल, देखो जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। जैसे COP 21 जो ग्लास क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करना है, 21वीं सदी के अंत तक हमें पूरा धरती का तापमान 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है। एक उन्होंने एक वो इन्वेंट फ्रॉम होम, तो वो चैरिटी घर से शुरू होती है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। आप जो अपने तो बहुत परेशान किया है। वहां पे ना सिग्नल नहीं आ रहे हैं। ठीक ठीक। 5-10 मिनट का और बचा है। जी जी, अब बिल्कुल सही आ रहा है सर। इसको भी लग रहा है वो क्लाइमेट वाला फ्रेश हवा की जरूरत हो रही है। जी, तो उसमें ये इंडिविजुअल लेवल पर क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजी की बात थी सर। हाँ, अब मैंने एक्चुअली आई हैव चेंज द प्लेस, मैं वाईफाई के नजदीक आ गया। मेरे जी, ख्याल से आप काफी ठीक आ रहे वेरी, होगी नहीं? नाउ इट्स वेरी क्लियर सर। Yes, sir, it is clear now. जस्ट ए मिनट, एक मिनट साइड में चला।
तो अभी जो बात आ रही थी कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आप यूज मतलब करें। आप जैसे आपको कहीं जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार का प्रयोग ना करें। आप कहीं कुछ लेने जा रहे हैं तो आप जूट का बैग लेकर जाएं। आप घरों में, अपने घर में जैसे आपकी जो लाइटिंग है, जो आपके जो बल्ब हैं वो एलईडी के बल्ब आप इस्तेमाल करें, तो उनसे आपको कम ऊर्जा की खपत होगी। तो आप हवाई यात्रा अगर जरूरत नहीं है तो आप कम करें। तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हम खुद कर हम खुद उनको अगर करते हैं तो हम जो हमारे जो एमिशंस हैं, जो एटमॉस्फेयर को हमको कम कर सकते हैं, और हम अपने कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर सकते हैं उसके द्वारा। थैंक यू सर। सर आगे क्वेश्चन है, हाउ कैन वी स्टॉप द कार्बन इमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज और पराली ये भी जलाना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि ये एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। जैसे मैंने बताया कि पंजाब में जो किसान है वो तो पैडी करते हैं, जो बासमती राइस उगाते हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और जो आपके जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वो वहाँ वर्षा कम होती है, 700-800 मिलीमीटर वर्षा होती है। लेकिन आप देख रहे हो जो बिहार का रीजन है, बंगाल है, उड़ीसा है, और आपका जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वो सब, उसमें सब में बहुत ज्यादा बारिश होती है, 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। तो लेकिन मतलब ये बहुत बड़ी आयरनी है, कहते हैं अतिशयोक्ति है, कि पंजाब में लोग चावल नहीं खाते, छोले भटूरे खाते हैं, रोटी खाते हैं, तंदूर की रोटी खाते हैं, लेकिन उगाते चावल है ज्यादा। तो जो राज्य हैं जिनमें मतलब जो हमारा जिस तरह की हम चीजें खाते हैं वैसी चीजें उगाएं, लेकिन हम एक्सपोर्ट के लिए उगाते हैं। हरियाणा में चावल की खपत कितनी है, बहुत सबसे ज्यादा चावल कहाँ खाया जाता है? हम देखें जरा इंडिया के मैप पे, चावल खाते हैं साउथ में, चावल खाते हैं बंगाल में, चावल खाते हैं उड़ीसा में, वो सुबह शाम ही चावल खाते हैं, लेकिन हम उगाते हम इधर है। तो हम ये थोड़ा हमें देखना होगा कि हम उसी तरह की स्मार्ट एग्रीकल्चर करें। अब जैसे पराली है, पराली की समस्या जो आ रही है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि बासमती राइस है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और बासमती राइस का जो एक अच्छा प्राइस मिलता है किसानों को। तो पंजाब के किसान वो बासमती राइस उगाते हैं और उससे पराली उत्पन्न होती है। लेकिन जब बासमती राइस उगाने के बाद जब बासमती राइस की जो जो पैडी की फसल काटी जाती है और गेहूं की फसल बोई जाती है, उसमें केवल 15 दिन का फर्क होता है। मतलब गेहूं की फसल अब जो गेहूं की आप सोइंग करते हैं, बुवाई करते हैं, वो नवंबर के पहले वीक में करते हैं। और चावल की जो फसल है, वो आपकी धान की खेती आपको काटते हैं अक्टूबर के एंड में। तो आपके पास 15-20 दिन का टाइम होता है। अब किसान कहते हैं हम पे टाइम नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, इसको जला देते हैं खेतों में। बट इसका नुकसान, अगर आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, तो इसका कितना हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ये सब। लेकिन भारत सरकार इसके ऊपर एक एजेंडा लेके आई है कि उन्होंने थर्मल पावर प्लांट के लिए बोला है कि आप कोयले के साथ में आप जो पराली है उसको प्रेस करें और उसकी ब्रिक बनाएं, ईंटें बनाएं। और पराली की ईंटें बना के आप 20%, हर थर्मल पावर प्लांट को नॉर्थ इंडिया में बोला गया कि आप 20%, अभी पेपर में भी काफी आया था कि आप 20% जो पराली के ब्रिक्स हैं वो आपको कोल के, अगर आप 80% आप कोल और 20% आप पराली को मिक्स करके जलाएं। ज्यादा जला नहीं सकते क्योंकि बॉयलर जो आपकी डिजाइन है वो कोल के लिए डिजाइन है। तो 20% आप पराली उसमें जलाएं, तो कहीं तक ये चीज, इसकी ये जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छा रिसर्च का टॉपिक भी है कि क्या ऐसी हम कोई ऐसी चीजें जो पराली से कोई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कोई हम ऐसे आइटम बना सकते हैं, कोई ऐसी हम प्लेट्स बना सकते हैं, जैसे हम ये खोई की प्लेट्स बनाते हैं, जो जो आप आजकल जो प्लास्टिक की प्लेटों में जो जो देखा होगा भंडारे में, इन सब में बहुत चलन हो गया है। क्या हम ये पराली से ऐसी प्लेट्स, कुछ हमें इसमें इनोवेटिव आइडिया करने होंगे, कुछ इनोवेशन करने होंगे। तो ऐसे इनोवेशन के लिए आप कुछ सोचिए कि क्या हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि रोजगार का भी सृजन हो, और ये जो समस्या है उसकी वो भी समस्या दूर हो। मुझे लग रहा है सर, जैसे आपने पिछले अपने सेशन में गन्ने के उसका छिलके वगैरह का कैसे रीयूज और कितने अच्छे ढंग से किया जा रहा है उसका, और किया जा सकता है, सेम अगर उसी तर्ज पे अगर इस तरह की कुछ बात चलती है, और शायद कभी सर इनके मुंह से कुछ पेंट वगैरह और इस तरह के उसमें यूज करने की बात चल रही थी, जो अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो ये सोचने वाली बात है, इस पे क्या हो सकता है सर? नहीं, वही है ना कि पराली में कुछ ब्लेंड मिलाकर कुछ ऐसा इस तरह का कोई इनोवेटिव आइडिया है कि क्या उससे हम प्लेट्स बना सकते हैं। जी। जो आप देख रहे हैं ना बाजार में, जो बहुत सारे
जो भंडारे या इस तरह के बहुत से जिनमें जिनमें जो आपको वैसे प्लेट नहीं मिलती है, तो जो इसकी प्लास्टिक की प्लेट है, तो ये क्या है, ये पूरा ये बायो मटेरियल है, डिग्रेड भी आसानी से होगा। तो क्या, और इससे क्या है, बहुत मास स्केल पे अवेलेबल है ये आपको करीब 10 लाख टन खाली पंजाब में ये इतना पैदा होता है। तो इसकी खपत खाली खाली ये नहीं, थर्मल पावर प्लांट ही इसको यूज करे। मुझे याद है जब बचपन में हम गांव में रहते थे, आज से ये करीब करीब 1975 की बात बता रहा हूँ। तो वेस्टर्न यूपी, ये केवल पंजाब में जलाते हैं, वेस्टर्न यूपी में पराली को कोई नहीं जलाता था। अगर आप कुछ गांव की बैकग्राउंड से कुछ छात्र यहाँ हैं या कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, तो वो याद करते होंगे कि इसको एनिमल बेडिंग के रूप में यूज करते थे। बिल्कुल कि बिल्कुल। जाड़े के दिनों में जब ठंड बहुत पड़ रही है, जनवरी में दिसंबर में, तो जो हमारे जो जो गाय हैं, भैंस हैं, जो दुधारू पशु हैं, उनके लिए बेडिंग, उनको नीचे बिछा देते थे इसको। तो नीचे बिछा के उनको वो ये वार्म भी रखता था। और वो क्या करते थे कि पराली अपने एक जो है किसी घेर में पराली बहुत सारी लाके भर लेते थे, और हर वीक में वो बेडिंग को चेंज करते थे। तो बेडिंग में क्या है कि जैसे गाय का मूत्र है, गाय का जो गोबर है, वो उस पर गिरता था। तो उससे क्या है, उसमें उसको वो फिर जाके अगर जाके डाल दिया कहीं घूरे पर किसी पर, तो उससे खाद बन जाता था। तो वो बेडिंग भी चेंज करते थे। इससे क्या है, पशु के लिए एक अपना बेडिंग में मिल जाता था। और ये पूरा चलता था, कोई जिसको जलाता नहीं था, ये उसका एक तरह रिसोर्स की तरह यूज करते थे। बाद में ले जाके उसको उसको खेत में जाके खाद के रूप में एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते थे। लेकिन पंजाब के किसान क्या है कि वो बहुत ज्यादा एडवांस फार्मर हैं। हम्म, और उनके पास इतना समय भी नहीं है। वैसे मैंने बताया कि 5 दिन का उनको तुरंत ही उनको गेहूं की बुवाई करनी है। ये फसल काटने के बाद, धान की खेती काटने के बाद, जी अक्टूबर के लास्ट में महीने में ये काटी जाती है, और नवंबर के पहले महीने से बुवाई शुरू हो जाती है। तो ये इसका सॉल्यूशन, इनफैक्ट इसका ये बहुत चैलेंजिंग सवाल है, इसको इसका सॉल्यूशन बनो कोई भी नॉर्थ इंडिया में अभी पूरी तरह से निकल के नहीं आया है। तो अगर कोई नया आइडिया निकल के आता है तो वो स्वागत योग्य है। नहीं तो पहले हम लोगों ने जो सर सुना था कि अपने खेत वगैरह में आग वगैरह लगाने से हमारे जो दो तरह के कीट होते हैं, एक तो मित्र कीट होते हैं, एक शत्रु कीट होते हैं, तो उसमें ये सारे कीट वो भी मर जाते हैं जो हमारे पौधों और फसल के लिए फायदेमंद होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही तो बात आपने बोली। जलाना तो किसी रूप में सही नहीं है, लेकिन चूंकि व्यक्ति को जल्दी में अपना काम निकालना है, इसलिए आग लगा के जल्दी उसको खत्म करो और काम इसके बाद अपना स्टार्ट। धन्यवाद सर इस अच्छे जवाब के लिए। एक और है सर, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसका पोर्शन लेके आप इसमें बात कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। डू यू हैव एनी डाटा हाउ इंडिया इज अचीविंग एसडीजी फॉर 2030? एसडीजी तो 17 उसमें गोल है, लेकिन हम तो क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं सर। इसमें क्या कुछ आपका क्या जवाब? क्या क्या दोबारा रिपीट करेंगे? एक्चुअली ऊपर से आवाज गुजर रहा था, काफी आवाज आ रही थी। जी, डू यू हैव एनी डाटा हाउ इंडिया इज अचीविंग एसडीजी इन 2030? देखो, एसडीजी के बहुत सारे गोल हैं, ठीक है ना। तो जो एसडीजी के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो 17 गोल है। मैंने कब पिछले वाले लेक्चर में, एक्चुअली समय कम था तो मैं पूरा ये मसाला लेके इसमें आया था। तो मैं जो इंपॉर्टेंट एसडीजी गोल थे वो मैं सब एड्रेस करना चाह रहा था, लेकिन थोड़े मैंने कुछ स्किप कर दिए थे। तो देखो, एसडीजी गोल में बहुत सारे हैं। आपने जैसे कहा, देखो 17 के गोल सब क्लाइमेट के ऊपर नहीं है। ये मेरा लेक्चर तो क्लाइमेट के ऊपर है, लेकिन इसमें बहुत सारे गोल है। जैसे उसमें एक गोल है कि स्मार्ट सिटीज, वो भी एक गोल है, ठीक है। सस्टेनेबल सस्टेनेबल एनर्जी यूज, वो भी है, स्मार्ट सिटी है। तो ये सब पे भारत सरकार काम कर ही रही है। इसमें आपने जैसे आज के लेक्चर में मैंने बताया, 100 स्मार्ट सिटीज पे हम काम कर रहे हैं। 100 सिटीज को हम उनका जो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको सबको बेहतर कर रहे हैं। तो वो सब इस पे भारत सरकार कदम, एक अच्छा कदम उठाया है। और एसडीजी के सभी जो गोल है 2030, अभी काफी समय है, अभी 7 साल है। तो 7 सालों में मुझे लगता है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत सारे गोल हम अचीव कर लेंगे। धन्यवाद सर। एक बड़ा टेक्निकल सवाल है सर, बहुत जब बिजली बनती है तो उसमें भी कोयला लगता है और CO2 निकलती है, और उस बिजली से इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते हैं, तब भी प्रदूषण होता है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जी। देखो, इसमें दो चीजें हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी जो भारत में 60% बिजली, अगर आपके घर में 100 यूनिट यूज हो रही हैं और सब एनर्जी मिक्स है, अगर, तो ये मान के 100 यूनिट में 60 यूनिट आपकी कोयले से आ रही है, 40 यूनिट आपकी न्यूक्लियर से आ रही है, हाइड्रो पावर से आ रही है, सोलर से आ रही है, विंड से आ रही है, या बायोमास एनर्जी से आ रही है।
तो आप जैसे हम कोयले का इस्तेमाल, हम कम क्यों नहीं कर सकते? कम मैंने बताया कि चीन, रूस और अमेरिका, इन तीनों देशों के बाद हमारे पास चौथे नंबर पर हमारे पास कोयले के भंडार हैं। हमारे पास 105 बिलियन टन, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, तो 105 मतलब 100 करोड़ गुणा 105, 105 बिलियन टन, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़, इतने टन हमारे पास कोयला है। और अगर हम कैलकुलेशन करते हैं आज में हम जितना कोयला यूज करते हैं उसके हिसाब से हमें ये 100-125 साल तक हमें कोयला चल सकता है। तो मैंने कहा ब्लैक इज ब्यूटीफुल, लेकिन हमें क्या है, कोल को ग्रीन करना है। जो मैं अभी मैंने जो डिस्कशन में काफी मैंने स्लाइड दिखाई थी सीसीयूएस के ऊपर, सीसीयूएस वो आपने पता नहीं उन्होंने समझा नहीं समझा पूरी तरह से, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। हम कोयले का इस्तेमाल करें, लेकिन कोयले का इस्तेमाल करने के बाद जो CO2 उससे निकल रही है, जो चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, मैं इस पे काम करता हूँ। मैं तो इसके ऊपर मेरे पास प्रोजेक्ट भी है सीसीयूएस के ऊपर, वो 7 कंट्री के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, इसमें IIT खड़गपुर भी शामिल है। तो वो ये बात चल रही है कि जो चिमनी से आपके जो एमिशन निकल रहे हैं उनको हम कैप्चर कर लें, वो सीसीयूएस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, और उसको कैप्चर करके हम CO2 को, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक पायलट प्लांट है इसमें तमिलनाडु में, ट्यूटिकोरिन अल्कली फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो वो पूरा CO2 को कैप्चर करके वो सोडा एस, जो कपड़े धोने वाला शायद सोडा है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको फिर क्या है जो यूनिलीवर वगैरह कंपनी ले जाती है। तो हमें क्या करना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कह रहे हो चार्ज करने के लिए आपको बिजली तो कोयले से ही बन रही है, सोलर एनर्जी से भी बन रही है। तो हमको जो जो हमारी जो जो ये कोयला बेस्ड जो हमारे पावर प्लांट है उनको हमें ग्रीन करना होगा, तो उनको जो हमें ये ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा, उससे क्या है हम एमिशन कम कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके जो सिटीज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप बिजली तो आप कहीं और दूसरी जगह पैदा कर रहे हो, और वहां से बिजली आ रही है यहाँ, तो आपका जो लोकल पॉल्यूशन है वो तो नहीं हो रहा है, लोकल पॉल्यूशन आपका नहीं हो रहा है क्योंकि आपके टेल पाइप एमिशन नहीं हो रहे। जी जी जी, thank you sir. Now the next question is, how can transportation system be transformed to reduce emission and promote low carbon alternatives? देखो इसमें तो काम हो ही रहा है। आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है उसमें क्या है कि आप वो लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ ही जा रहे हैं। फिर अभी जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया कि E20, ई मतलब जो इथेनॉल ब्लेंड, अभी उससे किसानों को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप जब इथेनॉल जो है, इथेनॉल फ्यूल इज वेरी जेंटल टू इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के लिए काफी जेंटल है और CO2 एमिशन कम करता है पेट्रोल के मुकाबले में। तो जब आप अभी दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पे, आपको हर पेट्रोल पंप पे दिल्ली के, आपकी अगर मर्जी, हर आपको एक स्टेशन, एक फिलिंग स्टेशन तो आपको मिल जाएगा जिसपे लिखा है कि E20, और वहाँ आजकल बैनर भी लगा दिए हैं। मैं पिछले वीक ही मैंने बताया था कि मैं कार लेकर गया तो मैंने E20 डलवाया था, तो उसमें अगर आप कार में अगर आप 100 लीटर, आप 10 लीटर तेल डलवा रहे हैं तो 2 लीटर उसमें इथेनॉल है और 8 लीटर पेट्रोल है। तो इथेनॉल इज वेरी ग्रीन फ्यूल, तो वो एमिशन कम कर रहा है। तो इसकी तरफ तो जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं हो सकता। जी 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 जी. Sir, someone has asked that what are the some successful case studies or examples of communities or countries that have implemented effective mitigation strategies? सर आपका थोड़ा अनस्टेबल था, मेरी आवाज नहीं गई क्या सर? जरा दोबारा बताएंगे? जी जी, हाँ मैं फिर से करता हूँ सर. What are some successful case studies or examples of communities or mitigation strategies? I think your audio is not Unclear. Should I go ahead with the question? हाँ आप बताइए। हाँ सर, कुछ केस स्टडी की इन्होंने बात की है कि क्या कुछ ऐसे कम्युनिटीज का या कंट्रीज का कुछ ऐसे सक्सेसफुल वो हमसे शेयर कर सकते हैं क्या, जिन्होंने मिटिगेशन स्ट्रेटजी को यूज किया है? देखो शेयर तो कर ही रहे हैं, जैसे अभी G20 में जो बात चल रही है, G20 में तो यही बात चल रही है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
तो हम टेक्नोलॉजी, देखो क्या है कि डेवलप्ड कंट्री जनरली कोई भी टेक्नोलॉजी को ऐसा शेयर नहीं करते। वो कहते हैं आप हमारी टेक्नोलॉजी खरीदो। लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर हम, हमारा परस्पर सहयोग अगर देशों में बढ़ता है तो वो टेक्नोलॉजी को हम शेयर ही करते हैं। क्योंकि जब आप अर्थ की बात करते हो, आप कहते हो कि अर्थ तो भाई एक ही है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सबके लिए मुसीबत है। कोई ऐसा नहीं है किसी एक देश के लिए, हर एक के लिए मुसीबत है। तो जो ऐसी टेक्नोलॉजी है उनको तो हमें शेयर करना ही चाहिए। लेकिन कुछ देश शेयर कर भी रहे हैं, कुछ और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की बात करते हैं। अ, अभी जैसे सीसीयूएस टेक्नोलॉजी की बात चली थी। जी। सीसीयूएस टेक्नोलॉजी जो है, मैं अभी जून के महीने में मैं था नॉर्वे में, तो मैंने देखा था उनका एक एक पावर प्लांट था, वो पूरा ग्रीन था। वो जितना भी एमिशन है वो सब कैप्चर करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन वो पायलट स्केल पे था। अभी वो टेक्नोलॉजी कॉमर्शियल होने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कॉमर्शियल होगी टेक्नोलॉजी तो वो कंट्री दे विल आस्क दी, यू नो, द मनी इन दैट फेवर टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो हमको टेक्नोलॉजी को शेयर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। एक किसी ने पूछा है सर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ अनगोइंग रेनिंग एंड फ्लड इन नॉर्दर्न इंडिया? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये सब, इसमें इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो चीज है, क्लाइमेट चेंज तो है ही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये हो रहा है। दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। धरती गर्म हो रही है, सबको पता है। लेकिन क्या है, हमने भी कोई कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। अब जैसे आपके जो मनाली है, कुल्लू है, आप जाके देखो, आप हमने ऐसी ऐसी जगह होटल बना दिए, जो नदी के किनारे जो स्लोप्स हैं वहां हमने होटल बना दिए। हाई रीचेज में, और जब आप किसी पहाड़ी एरिया में आप होटल बना रहे हो, आप घर बना रहे हो, बड़े बड़े आप वो बना रहे हो, तो उसके लिए आप पेड़ों को काट रहे हो, आप स्लोप को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। तो ये क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमने भी, मतलब जो जिस तरह से हमने जो डेवलपमेंट किया है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया, अनसस्टेनेबल किया। तो ये दोनों की वजह से है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश अधिक बढ़ी, ये सब हुआ। लेकिन जब आपने एकदम नदी के किनारे ही अपना घर बना लिया है, और आप कह रहे हो कि नदी में बाढ़ आ गई, नदी में बाढ़ तो 5 साल में, 10 साल में कभी कभी आएगी। हर चीज का एक अपना राइट ऑफ वे होता है। आप हाईवे की तरफ एक दूसरी साइड में 10 मीटर पर आप सो रहे हो, कोई किस मतलब, ये आप जो हाईवे है या नदी है या रिवर है कोई भी, उसका अपना एक राइट ऑफ वे होता है, उसका अपना फ्लड प्लेन होता है, उसका अपना राइट है। वो उधर बहे या ना बहे, लेकिन उसका राइट है। तो इसी तरह से पहाड़ों पर आपने जो इतना अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है, आपने बिना सोचे समझे। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमने बहुत सारे डेवलपमेंट भी बहुत अनसस्टेनेबल किए हैं। हमने बहुत सारे उस क्षेत्र में हमने, अब जैसे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तापमान बढ़ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिमालय का तापमान दूना बढ़ रहा है। अगर दिल्ली में आपका 2 डिग्री बढ़ाएगा तो वहां 4 डिग्री बढ़ेगा। क्योंकि जो हिमालयन एनवायरमेंट है, जो ग्लेशियर्स है, वो ज्यादा फ्रिजाइल है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जो उनकी सेंसिटिविटी को हमको समझना चाहिए। थैंक यू सर। मुझे लग रहा है ये शायद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो और है सर, लेकिन इसको हम लास्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। किसी ने पूछा है सर कि ज्यादा की, जैसा कि हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज को के ऊपर, हमारा ज्यादा फोकस हो रहा है, क्यों नहीं हमारा फोकस ज्यादा स्मार्ट विलेज पे होना चाहिए और सस्टेनेबल विलेज पे होना चाहिए, जिससे हमें ये फायदा होगा कि लोग अब ये जो माइग्रेशन की समस्या जो आज हो रही है, वो माइग्रेशन की समस्या भी रुक जाएगी। और चूंकि भारत गांव में ज्यादा रहता है, तो गांव के सस्टेनेबिलिटी और गांव का वो स्मार्ट की जो स्मार्टनेस की बात है, वो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, वो ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। जी। देखो, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारे जो है, जो महात्मा गांधी का जो स्वराज का कंसेप्ट है, उसमें तो यही है कि ग्राम स्वराज, वो ग्राम स्वराज तो वो ग्राम से ही आएगा। तो हमें इसके ऊपर भी देखना होगा। लेकिन अभी जैसे भारत सरकार का फोकस जो शहरों के ऊपर है, देखो शहरों में भी आप देखोगे, शहरों में भी बहुत ज्यादा गरीबी है ऐसा नहीं है। शहरों में भी काफी, क्योंकि बहुत सारे शहर अनसस्टेनेबल होते जा रहे थे, उनमें भी बहुत सारे जो आप देख रहे हो, बहुत से लोग ऐसे भी हैं शहरों में। गांव में कम से कम हर आदमी घर में सोता है, लेकिन शहरों में आप जाओगे तो शहरों में आप देखोगे बहुत से लोग। आप जून के महीने में आप निकलिए दिल्ली की, नई दिल्ली में आप निकलिए, आप दिल्ली के बहुत सारे, और ये आप देखोगे बहुत सारे लोग अखबार बिछा के सड़कों पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। बंबई में भी लोग फुटपाथ पे सोते हैं।
तो शहरों में भी अब शहरों को भी मतलब ये ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी पे ध्यान दिया जाएगा। तो पहले अभी इन्होंने स्मार्ट सिटी से काम किया है। अभी पूरे भारतवर्ष में 5.5 लाख गांव हैं। तो इसके बाद हो सकता है सरकार कुछ मॉडल, ऐसा नहीं है कि गांव पे काम नहीं है, बहुत सारी जिलों में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये आदेश भी दिए गए हैं कि हर जो जिले में हम कुछ मॉडल गांव बनाएं, मॉडल ग्राम बनाएं, जिनको लोग देखें और उनके फिर लोग उनका अनुकरण करें। तो शहरों के बाद में ये गांव का नंबर भी आएगा। और मॉडल विलेज तो हमने विकसित किए भी हैं, बहुत सारे मॉडल विलेज, आपको भी पता होगा सर कि बहुत जी सारे जी मॉडल विलेज विकसित किए हैं। जी। और लेकिन गांव, जी, हमें बहुत खुशी है सर कि हमारे जो दो इस तरह के लोग हैं, एक हमारे पोपेट पवार जी हैं जिनको पद्मश्री मिला है पिछली साल अभी, जिन्होंने हेवरे बाजार अहमदनगर महाराष्ट्र का एक जिला है, और आज के दिन में वो भारत का सबसे प्रति व्यक्ति पे था। उनको भी हमने बुलाया है सर आगे वाले सेशन में। और एक लक्ष्मण सिंह जी हैं जिन्होंने पानी के लिए और अपने पूरे एरिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो लापोरिया से हैं, उनको भी बुलाया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया है सर। ये कौन से जिले से हैं, कौन से राज्य से हैं? एक महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है सर, हाँ है। हिवरे बाजार। हाँ। वो ग्राम स्वराज करके उनका बहुत बड़ा वो है सर। आज के दिन में प्रति व्यक्ति आय जो भारत में सबसे ज्यादा उसी गांव का है, अहमदनगर का है। और एक हमने बुलाया है सर लक्ष्मण सिंह जी को, शायद आपने कभी देखा होगा, उनको भी पद्मश्री मिला है, जिन्होंने राजस्थान जैसे वीरान जगह पर पानी जहां 1200 फीट था, आज खेती वगैरह की इतनी व्यवस्था, नहरों पानी की व्यवस्था, तालाब की व्यवस्था, उसको पूरे उस एरिया को ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो 2 सेशन में बारी बारी करके उन लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, ताकि थोड़ा हमारा इन आप जैसे शिक्षाविद के साथ साथ थोड़ा जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनको भी हम सुने इसमें। ये सर क्या है, गांव में हो सकता है, लेकिन गांव में जो आपके जो गांव में ग्राम प्रधान होते हैं, विलेज प्रेसिडेंट होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, अगर वो ईमानदारी से काम करें तो ये गांव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की गांव में राजनीति है, छोटी राजनीति है, वो भी एक बहुत ज्यादा आड़े आती है। मैं भी गांव में जाता हूँ, देखता हूँ। लेकिन अगर ईमानदारी से काम किए तो मेरे ख्याल से कोई ऐसे सरकार की तरफ से पैसे की कमी गाँव में नहीं है। आजकल बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं हैं, मनरेगा है, बहुत सारी और योजनाएं, उनमें सब में पैसा मिलता है, कभी तालाब डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए। तो ईमानदारी से जो लोग गाँव में काम, जिन गाँव में काम ईमानदारी से लोगों ने किया है, वो गाँव एक मॉडल गाँव, आदर्श गाँव बन गए हैं। और मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने शुरू शुरू में वो तो ग्राम स्वराज का ही कंसेप्ट लेके उन्होंने कोई शहर स्वराज की बात नहीं करी थी, उन्होंने ग्राम स्वराज की बात करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत बखूबी से, और मुझे लग रहा है पार्टिसिपेंट्स भी बहुत संतुष्ट हुए होंगे। प्रश्न बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा को हम देखते हुए और आपके शेड्यूल को देखते हुए बस यहीं पे अपने इस क्वेश्चन को विराम देते हुए नम्रता जी से रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। तो नम्रता जी, और आपके अभी विश्व युवक केंद्र से ही है या फिर कहीं और से? जी जी जी, अच्छा, नम्रता जी हमारी कलीग हैं जी। चाणक्यपुरी से ही? जी चाणक्यपुरी से ही आप जी पार्टिसिपेट जी कर जी रहे हैं? हाँ। Good evening to one and all. It is my pleasure that I've been asked to propose a vote of thanks to our resource person for today, Dr. N.C. Gupta sir, who took out time from his very busy schedule and helped in making this session very informative and engaging. Sir discussed about the national missions that our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is implementing under his leadership. He talked about ways of enhancing forest carbon sinks. Then he touched upon the sustainable lifestyle that we all need to adapt to mitigate our changing climate. He talked about the need for decarbonization, in which he gave us information about Panchamrit that is going to be implemented to achieve the net zero status for India by 2070. He talked about the carbon capture, utilization, and storage. And so also very briefly explained about this technology and how this is going to be implemented and how it will be beneficial for our country
and for mitigating the climate. Then he lastly talked about the recent initiatives that has been adopted by the government in the sector. Sir, thank you so much for again, sparing your valuable time and sharing such valuable information. Your session has, truly motivated us to do a bit for the climate and become an active stakeholder to mitigate this changing climate. I want to thank Ajit sir, VYK team and Mewar Institute of Management team for their cooperation as always. Last but not the least, I would like to thank the participants who always ensure to stay till the end and very respectfully and peacefully listen to the whole session and also get their queries answered. Thank you so much for your presence and active participation. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you so much.